Okay, ji, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today is our third day of the training, and yesterday we left off at the start of the first chapter, that is the introduction. The first two sessions were spent in describing the PMP certification and its requirements and how to appear in the certification exam and how to maintain the requirements later on. So we start off with the very first topic of PMBOK in the first chapter. That is the purpose of PMBOK. So the purpose of PMBOK, as some of you have already known from your previous experience, this is a standard. Standards provide guidelines and they are not mandatory. This is optional on you whether you like something out of it and you want to use it or not. So this will only recognize and identify that subset of project management body of knowledge that is generally recognized by all cultures, all disciplines, all industries worldwide, which is generally recognized to be the good practice in project management. So here we are not much concerned about whether it is the best practice or not, because best practice is not really required at this stage. We basically do want to understand what are we doing wrong. So if we have a clear picture of what all are the good practices doing which we may meet success, then you try to follow those good practices. But the problem with project managers is that they usually do not understand that whatever they are doing, is it a good practice or a bad practice. So most of the time they are using a combination of them all, and ultimately they fail due to certain misuse of these practices. They are not properly using and properly utilizing. So whatever practices they have learned are from their own experiences or their profession. A civil engineer may have his own way of looking at things, and he would define good practices specific to his industry. Now, that might be good enough for his industry, but once we are talking about general recognition, that civil engineering is not generally recognized by all disciplines. IT person may not be able to use that specific practice in IT. So the civil engineer is using some technical jargon or technical practices. So we want to have a uniform mechanism established which we can point out to what is good and bad, and everything is to be in a layman's language, in a general language, not in specific language of any one discipline. So that was a big challenge. Number one is to identify all those such like generalized good practices and isolating them from the bad practices, as if we are cautioned not ever to use the bad practices which otherwise we keep tumbling around on. But at the same time, remember, I am not insisting to go for the best practices. Best practices way off. That is not required at this stage when I am learning how to walk. Yes, if I am a good walker and I know how to run, then maybe I would ask for those key points, those best practices, as if I can be the leader. I can lead the race. So for the standards are only going to give me what is good and what is bad, and naturally I am supposed to be following the good practices. Best practices is going to come later, and it is not the subject of a standard. It is not the subject of this body of knowledge. Then the second major term we used here is the general recognition. Whatever we are identifying must be generally recognized by all circles, all cultures,
all industries, all geographies. So people all around the globe, no matter where they are located or from what industry they belong to, they should have a general understanding that this is a common layman term for them all. So that language is to be used, and that actually gave birth to a project management lingo now known to almost all project management professionals around the world. There are certain terminologies which are known only to the project managers, and if you are a PMP, you would be easily able to understand how any project manager anywhere in the world is referring to. So general recognition means that the knowledge and practices described are applicable to most of the projects most of the time, and that there is widespread consensus about their value and usefulness. So people generally agree and understand that if we do things this way, that may lead to our success. But you see, here I want to point out that this is not a guarantee for success. Even if you follow the good practices, it differs from project to project. One person might be very successful in his project, following exactly the same principles and practices. Another person might fail, and this fail cannot always be attributed towards the use of these good practices, because projects are different from other projects. So this is not something standard that PMI does not take on the responsibility that if you use these practices, you will always be definitely successful. So there is no definitiveness about it. This is just, PMI is helping you build uh, a library of these kind of good practices, and it is your prerogative whether you use a certain practice or not, and also to how much rigor and how much emphasis you are giving to each one of those practices, that you will have to tailor yourself according to the needs of your project. So I have defined the good practice. Next, we'll talk about what is a project. Naturally, everybody out of you must be having some idea of what the project is. And naturally, I do understand you might not be wrong as well. Because there are lot many books, lot much of literature written from time immemorial. And especially after Second World War, there is a lot of work on project and project management. There are a lot many authors, I have read many of them. They have their own way of describing what a project is and how it should be handled. But as the time has passed and the things have evolved, now we have got ultimately our standard to follow. And this standard has very carefully designed these definitions, and this terminology is properly defined now in a manner that you can have a unified view. You know, how do you define a project? Let us discuss. First, let us talk with Abid. Abid, how do you define a project? Sir, as per my understanding, project is a temporary endeavor which will produce a well-defined product Okay. with cost, scope, and time Okay. constraints. Right. Okay. So Abid says this is a temporary endeavor to produce some kind of a product, and naturally he has to take care of the scope, time, and cost in it. Okay, we will reserve this definition and let us talk to Ghazi Shumail. Ji Ghazi, what is your definition of a project? Ghazi, are you there? Sir, I'm here, sir. Can you repeat your question, sir? I'm just asking you, how do you define a project? Sir, a project, my understanding is an endeavor which has a definite start and end. It consumes some resources, and it gives you a certain product, a unique product or a service. That's it, sir.
Wonderful, wonderful. And now we have Kuratulan. So project is something that has a time limit, and after the end of this time span, something, a product or a service is created. Okay. Rizwan Saab. So it's unique endeavor. By unique, I mean that it's not a repetition operation with clear start and end and some deliverable at the end. Okay. All of you are almost on the same line, and you are all are correct. But you see, project could be defined as anything, which might have more than one task to do. Naturally, the older definitions, it was very hard to define or differentiate between a project and an operation. So people used to say it's a combination of activities, putting the activities in a certain order and doing them for a certain purpose. Yes, it is okay, but we have to have a concise definition. And actually, two or three of you have already used the word endeavor and a temporary endeavor. We'll see what PMI defines and what PMI says about it. This is the exact definition PMI has. Project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result. Now you see, you people have talked about scope, time, and cost. It does not talk about scope, time, and cost. There must be a reason for that. Then Rizwan Saab said a unique endeavor. No, it is not a unique endeavor. The product is going to be unique. The thing we are producing out of it is going to be unique, and I'll talk about it. First of all, let's see what does this word temporary means. What does this word temporary means? Temporary means that we are going to do something which is not going to stay. Well, the job is not going to stay. So whatever we are going to do, it is a temporary effort. We will do it and we will never do it again. You understand my point? So the purpose this work is serving would be served, and then it would be no more. The product or the output of this endeavor, of this work, may remain, but the work itself will not continue. So this is temporary. So that indicates to what Ghazi said, that it has a definite start and a definite end. It has to start at some point. It has to finish at some point. That, and I'm not saying at all, not at all, I'm not saying that we have a fixed duration for that. I'm not saying these are 10 days and you start on 1st of December and complete on 10th of December. I'm not saying that. I do not mean that it has got predefined dates. I'm saying the project will start at some point in time, but it must start, and it will finish at some point in time, and it must finish, because it is a temporary endeavor. It cannot be there forever. It cannot continue unlimitedly. So temporary does not mean that we have a fixed date to start, fixed date to finish, but just that it will start sometime at some point in time and it will finish at some point in time. So there is definitely going to be some start and some end. The second word is endeavor. What do we mean by endeavor? Endeavor is a kind of a struggle, is kind of an effort, is kind of a challenge. So we are asking you to take on a challenge temporarily, and naturally, why are you taking this challenge? Because you have probably never done this kind of job before. This is new to you. This is something you are not in habit of doing usually. This is the challenge you have accepted, and you would do it, and once the accomplishment is made, it is no more. The accomplishment remains, the work does not exist any further.
So you were putting in all your effort for doing this specific work as if something should come out of it, and that something which comes out of it remains and the work finishes. So temporary nature and also endeavor. The word endeavor also means that because we are going to do something new, we are not really very certain about it. We are not very certain about it. Because if I was in habit of doing something, then I would be exactly certain that if I enter my office, I will find a chair on this corner and a table on that corner. So this is the certainty with which I enter my office daily. But if I enter a new office and I do not know the setup in the office, then I will be surprised at whatever I see. And I will register it for the very first time. So you are doing this endeavor for the very first time and you are not really sure about things. You do have some expectations, but you are not sure about it, and you are going to learn over the time. You will enter the room, you will look at the things, and ultimately you will understand how the things are there. And then as you move ahead and you sit down in a chair, you will find out the chair is not strong enough and it may break. And then when you do another thing, you will find some more facts. But before entering the room, you did not know a lot many things. You assumed, yes, I'm entering office, there must be a chair, there must be a table, and there must be a telephone there. So these are all your expectations due to your experience of visiting other offices in earlier life. So now you come with your expectations. This is your proactivity. You are proactively expecting that this room will be like that, and when you enter you do not find it like that, or you may find it like that, and ultimately you will keep learning things over the time. So whatever you are going to do would create something new, and that something would be either a tangible thing or an intangible thing. A tangible could be in shape of a product, a deliverable. But what you are doing might not result in a product. Sometimes, as I am teaching you, if it is a project for me to teach you, then I am providing you a service. And if I successfully complete this service, then I have delivered what I was supposed to deliver. It is not a product. It may not be a product at all. It is a service I am delivering to you. Or maybe it is a result. Like you see, you ask me to write a report. I write a report and submit it to you. That is a result I have produced. So the output is to be created through a temporary endeavor, which is I have never done before. I am taking up a challenge, and because it is a challenge, I don't know what it is. So I try to learn as much as I can. I try to create it, and the thing which I am going to be creating is going to be unique. At least for my experience, it is going to be unique, and that could be in form of a product or service or a result. So when I say something is temporary, it will take limited time. It is not going to take infinite time. It will take limited cost. It will be of limited scope. You see, the scope, time and cost automatically get adjusted into the word temporary. Endeavor points at the risk or the uncertainty hidden under the hood. And we are expecting to be creating something new. And that is my product, service or result. Any comments? No, sir. Thank you. Okay, I hope this is clear. Yes. I know you are already clear about this subject, but I am just endeavoring to make it further clear to you as if you do not have any further doubts about it. So the next slide is just explaining the thing which I have already talked with you. So just I'm just skipping those 2-3 slides. Okay, what is project management? Now this is even more interesting. Naturally, you would say it is the management of a project. Yes, it is.
but at the same time, project management has a deep rooted meaning. And what is that? Okay, you see, let us forget about project management. Let us talk about maybe you are a carpenter and you are trying to make a table. So if I want you to make a table for me, what should I be looking at? I would be expecting that the job I am trying to give you, you must have sufficient knowledge about that job. You know how to make tables. You know the profession of carpentry. Moreover, it is not only the knowledge you should have, but I also expect you to have had made a number of tables before, and if possible, the table you have made must be at least nearer or closer to the design I am asking you to do. So your experience in related work is greatly respected. Even you don't show me, if you don't show me proper knowledge of carpentry, I will never give you this job. But even if you are a fresh graduate, you have just done a training and you come out of it, I say, okay, you have knowledge, but how much experience do you have? And if you can't show experience, then I will be a bit doubtful. I may give you a chance, but I am a bit doubtful about your skill and my expectations are lower. Right, if you have the relevant experience which is expected for a carpenter to make this table, it's good enough. But then the question is, do you have the necessary tools and techniques? I asked you, you have the knowledge, you did a 3 years diploma from somewhere in carpentry and you have 15 years of experience, now make me a table. You say, sorry sir, I can't make you a table because I did not bring my tools along with me. And without the tools, I cannot make the table. I can't insist that because you have got a lot of knowledge and skills, you must make the table with or without the tools. No, it is not possible. He needs to have his tools. So tools are important. And what if I tell him that you have all the tools, I have myself have all the tools, I will give you my tools, make the table now. What is the problem? I will ask you to please give me the solution to this. Anybody? I have the tools. मेरे पास आरी भी है, थोड़ी भी है, सब कुछ है. मैं कहता हूँ मेरे टूल्स ले लो और मुझे टेबल बना दो. तो कारपेंटर बना देगा कि नहीं बनाएगा? So he has to have some techniques to complete this job. Okay, what are those techniques you are referring to? So the basic rules and the basic factors that govern making a table, that he has to know, sir. That is covered in his knowledge and skills. I am just giving him the tools. मैंने उसे एक हथौड़ी दे दी है, एक आरी दे दी है, इस तरह की चीजें मैंने उसे दी हैं. तो टूल्स मैंने उसको दे दिए हैं. अब कौन सी टेक्निक? So maybe he won't be comfortable without his own tools. यानी हो सकता है उसे आपकी वाली आरी की आदत ना हो. Right, that is the point. That is the point. बात ये कि चीजें तो मैं उसे वही दे रहा हूँ, आरी भी दे रहा हूँ, थोड़ी भी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ जो उसे चाहिए, मगर वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो जरूर होगा ना भाई. वो अनकंफर्टेबल इसलिए होगा कि अपने औजार के ऊपर उसका हाथ बैठा हुआ है. उसको पता है कि मैंने जब आरी चलानी है तो कितनी डिग्री का एंगल रख के मैं चलाता हूं तो मेरी वाली आरी मोस्ट एफिशिएंटली वर्क करती है. आप कभी बाजार से जब नई आरी खरीद के लाते हैं, कभी उसे चलाने की कोशिश करें लकड़ी पे, आप जितने ही बड़े माहिर क्यों ना हो, पहले वो आरी कभी इधर को जाती है, कभी उधर को जाती है, एंड अल्टीमेटली यू सेट योर एंगल एंड अल्टीमेटली यू आर एबल टू आप टेक्निक समझ जाते हैं, उसका आप एंगल समझ जाते हैं. तो जो भी कोई टूल है उसका अपना अपना टेक्निक होती है. इट इज जस्ट नॉट द मैटर कि ये पेचकस है तो पेचकस तो काम करेगा, काम तो करेगा, लेकिन अब वो किस तरह का पेचकस है और किस तरह से उसे पकड़ना है. मैं पकड़ के उसको जिस तरह आमतौर पे अपने पेचकस को पकड़ता हूं, मैं उस तरह पकड़ूं
लेकिन ये तो थोड़ा एडवांस पेचकस है, इसको पकड़ने के लिए जगह तो कहीं और बनी हुई है। और अगर आप बिल्कुल ही इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो फर्ज करें मैंने उसको कहा कि भाई मैंने तुम्हें आरी दे रहा हूं, मैंने उसे आरी दे दी, लेकिन मैंने उसे चेन सा दे दी है। मैंने रिक्वायरमेंट तो पूरी कर दी, आरी तो दे दी है उसको, लेकिन मैंने दी है उसको चेन सा। और उस बेचारे ने अपनी जिंदगी में कभी चेन सा की नाम की चीज नहीं देखी, उसको समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या करना क्या है। वो उसको लकड़ी पर रगड़ने की कोशिश करता है, वो कुछ भी नहीं करती। उसको पता ही नहीं है कि इसका तो कोई बटन भी होता है और इसको तो बिजली से भी चलाना होता है या कोई और सिलसिला होता है, तो उसको वो तरीका या वो टेक्निक नहीं आती। तो ये चारों चीजें कोई भी काम करने के लिए नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड। ये तो मैंने इस पैराए में बात की कि ये चीजों का पता होना चाहिए। लेकिन देयर इज येट अनदर क्वेश्चन, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू डिफाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? You see, even project manager needs to have certain knowledge, certain expertise, skills, and certain tools and techniques. Why I did not talk about those in the beginning and why did I take the example of a carpenter was because the knowledge, skills, tools, and techniques used by project manager are sometimes very intangible. You can't say Ari, you can't say pechkas, you can't say hammer. इसके टूल जरा डिफरेंट किस्म के होते हैं जो शायद नजर भी नहीं आते। तो अब उसको समझने के लिए मैंने ये एग्जांपल आपको इसलिए दी कि कारपेंटर तो हम सब जानते हैं और उसके टूल्स को भी सब जानते हैं और टेक्निक की भी बात समझ आ गई है। तो अब हम बात करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से। अच्छा जी, पहली बात, आप अगर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, क्या आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज है? जरा गौर से सोचिए इस बात के ऊपर। नो मैटर आपका 35 साल का एक्सपीरियंस हो, क्या आपने कभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ी है? जी जवाब दीजिए। आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, क्या आपको इस पढ़ाई के दौरान जिंदगी में कभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी पढ़ाई गई है? वेरी लिमिटेड सर। वेरी लिमिटेड। अभी गाजी के साथ तो मैं इस तरह भी रिलेट कर सकता हूं कि ही इज अ सिविल इंजीनियर एंड आई एम आल्सो अ सिविल इंजीनियर, और इंजीनियरिंग के अंदर हमें पूरी इंजीनियरिंग पढ़ा दी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं पढ़ाई। एक सब्जेक्ट होता था, बड़ा छोटा सा मामूली सा ऑप्शनल टाइप का सब्जेक्ट होता था, उसका नाम था इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। उस इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के अंदर एक चैप्टर में एक सफे पे कहीं जिक्र था पर्ट एनालिसिस का, और वो भी उस बेचारे इंस्ट्रक्टर को जो कि पढ़ाने आया था, वो एमईएस का कोई बंदा था बेचारा, उसकी ड्यूटी लगाई थी कि भाई तुम्हें ये पढ़ाना है। उस गरीब को नहीं पता था कि ये क्या चीज होती है और वो हमें नहीं समझा सका। ये तो खैर मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूं, पता नहीं आजकल क्या सूरत हाल हो। आज से तकरीबन 10 साल पहले मुझे यूईटी लाहौर वालों ने बुलाया और उन्होंने कहा जी कि आप हमारे जो लोग बैच पास आउट हो रहा है उनको जरा बताएं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो मैं लाजमी बात है, बड़ा अरसा हो गया था मुझे अपनी डिग्री किए हुए और मुझे अंदाजा नहीं था कि आजकल क्या पढ़ाया जा रहा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करके गया कि दे वुड बी नोइंग अ लॉट ऑफ अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अभी तो दौर बड़ा बदल गया है, लोगों को पता होगा कि प्रोजेक्ट क्या चीज है। तो मैंने जाते ही उनसे ये कहा कि भाई बात यह है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो आप सब जानते हैं ना, आप लोग इंजीनियर हैं सारे, आपको आप ये बताएं कि क्या मैं कोई एडवांस टॉपिक के ऊपर बात करूं? तो मुझे जवाब ये मिला कि सर ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती क्या है। मैंने कहा आपको नहीं पढ़ाया जाता। पता चला कि आज से 10 साल पहले तक की बात कर रहा हूं, उस वक्त तक तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कभी भी इंजीनियर्स को नहीं पढ़ाई जाती थी, बाकी तो छोड़ ही देना बिल्कुल। अब तो हम खुशकिस्मत हैं कि अब कम अज कम यूनिवर्सिटियों में इसके अंदर मास्टर्स होना शुरू हो गया है, मास्टर ऑफ साइंस हो रहा है, नॉर्मल मास्टर्स हो रहा है, डिप्लोमाज हो रहे हैं, पीएमपी की वजह से बड़े लोगों ने कोर्सेज कराने शुरू किए, बड़ी अवेयरनेस फैल गई है। लेकिन मसला ये है कि अभी तक हमारे जो प्रोफेशनल जो डिग्रीज हैं उनके अंदर ये पार्ट एंड पार्सल नहीं बना, जबकि अगर देखा जाए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हर कोई करता है, हर प्रोफेशन में जरूरत है, हर किसी को जरूरत है, नो मैटर आप इंजीनियर डॉक्टर हैं या नहीं है। अगर आप क्या कहते हैं सोशल सेक्टर में भी काम करें तो प्रोजेक्ट तो वहां भी होते हैं। आप देखते नहीं है कि एनजीओ के कितने प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, डोनर एजेंसीज के कितने प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, सोशल प्रोजेक्ट्स की बेइंतहा। तो मेरा मतलब है कि वो कौन लोग हैं जो वो करते हैं और उनको कौन पढ़ाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? कहीं से भी नहीं। तो मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा खला है नॉलेज का।
तजर्बा बड़ा है जी। मैं एक दफा लाहौर में पीएमओ, लाहौर पीएमओ एक बना था पिछली हुकूमत में। उन्होंने बुलाया कि जी आप हमारे जो एग्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट में, तो मतलब सेक्रेटरी लेवल के लोग थे, इनको जरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा दें। तो हम गए वहां पढ़ाने के लिए। जब बात करनी शुरू की तो वो सारे इतने सीनियर बुजुर्ग किस्म के हजरात, वो तो बात सुनने को तैयार ही नहीं। ओ जी आपको ज्यादा पता है, आप पता नहीं कहां से आ गए, हमने 35-35 साल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया है, हमने इतने मिलियन और इतने बिलियन के प्रोजेक्ट किए हैं, तो आपसे तो हम ज्यादा जानते हैं। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अच्छा जरा मुझे ये तो बताइए कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इल्म कहां से हासिल किया भाईजान? किसी के पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग, कोई फॉर्मल नॉलेज नहीं था। उन्होंने कहा नहीं ये क्या बात करते हैं, हमारा तजर्बा ही बड़ा है। तो पहली बात तो ये है कि अगर इल्म एग्जिस्ट नहीं करता तो इल्म में एवोल्यूशन कैसे होगी? जिस बंदे के पास बुनियादी इल्म नहीं है वो आज के इल्म की बात कहां से करेगा? तो वो तजर्बे की जब बात कर रहा है तो वो तो फिर उसका जाती तजर्बा हुआ ना, या उसके इर्द गिर्द के सर्कल का तजर्बा हुआ। तो वो एक महदूद कुएं के मेंढक की तरह उस कुएं के अंदर रहते हुए कुएं को ही पूरी दुनिया समझते हुए अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहा है, और वट एवर रिजल्ट ही इज अचीविंग वो उसको सक्सेस कह रहे हैं। और मुझे इतराज भी कोई नहीं है, आप भले उसे सक्सेस कहते रहें। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट इससे ज्यादा बेहतर और एफिशिएंट तरीके से नहीं हो सकता था? वो यही समझ रहा होता है कि नहीं जी मेरे जैसा तो कोई काम ही नहीं कर सकता। आप यकीन करें, आप हैरान रह जाएंगे जब मैं आपको ये प्रूव कर दूं कि जो प्रोजेक्ट आपने बेहतरीन एफर्ट के साथ कहा जी ये तो 2 साल से कम में हो नहीं सकता, मैं आपको 6 महीने में करके दिखा दूं, तो फिर क्या कहेंगे आप? मेरा मतलब है आप वाकई जिसे कहते हैं दांतों में उंगलियां दबाने वाली बात आ जाती है, इतनी हैरतनाक सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। तो वो जनाब, वो जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने कहा जी कि नहीं हमें तो तजर्बा ही बहुत ज्यादा है और हमें कोई जरूरत ही नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ने की। तो ये भी एक माइंडसेट है। तो उसके लिए फिर मैंने उनको कहा कि जनाब आप ऐसा कीजिए, क्योंकि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू टीच दोज पीपल जो मतलब राजी ही नहीं है सुनने के लिए। मैंने कहा जी आपने इतना बड़ा बड़ा तजर्बा किया, इतने मिलियंस के डॉलर किए, आपने बड़ा कारनामा किया हुआ है, आप ऐसा करेंगे आप जरा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाएं और उसमें आप जितनी प्रोजेक्ट किए हैं और जो जो कारनामे किए हैं उनकी पूरी तकरीर करें। आप 25-30 लोग थे जी। आप यकीन करें 5 दिन का कोर्स था और 2 दिन तक वो अपनी तारीफें करते रहे। एक एक घंटा बोला एक आदमी, खूब खुल खुला के बोला, जितना उसमें दम था बोलने का वो बोला, और उन्होंने अपना जितना डीजल था एग्जॉस्ट कर लिया। जब उन्होंने सब कुछ बोल बाल दिया और उनको ठंड पै गई, चैन आ गया, तो उसके बाद मैंने उनसे कहा कि जनाब आप लोग का 35-35 घंटे 35-35 साल का एक्सपीरियंस है ऑन एवरेज, और ये जो किताब मैं पढ़ा रहा हूं ये मैंने नहीं लिखी, और मेरा इल्म जो है वो इस किताब के ऊपर मुनहसर है। मगर ये किताब लिखने वाले जो लोग हैं वो आपसे ज्यादा तजर्बा रखने वाले 15,000 दुनिया भर से लोग हैं, जिनके अंदर आपके कल्चर के लोग भी मौजूद हैं। उन सब के तजर्बात इसके अंदर जमा है। तो आप जरा 15,000 को 35 से मल्टीप्लाई करके देख लें तो आप लोगों का तजर्बा जो कि कुएं के मेंढक की तरह उससे तो कहीं ज्यादा ही होगा। तो पहली बात तो ये है कि आप कम अज कम इस बात का एहतराम कर लें कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और ये कुछ ना कुछ तो सही भी कह रहा होगा। ये स्टैंडर्ड कहीं भी आपको ये नहीं कहता कि लाजमी तौर पे इसको इस्तेमाल करो, मैंडेटरी नहीं है ये स्टैंडर्ड। ये कहता है कि यार गाइडलाइन है, आप लोगों को पसंद आती है इस्तेमाल कर लेना, नहीं आती है तो आपका भला, जैसे मर्जी आप करना चाहें वैसे कर लीजिए। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज कि इस स्टैंडर्ड में कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं कर रहा कि आपने इसको ऐसे इस्तेमाल करना है। लेकिन अब ये बात समझने के बाद कि जी नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स, ये चीजें यहां पे हमें ये देखना है कि ये चीजें हम अप्लाई कहां करें। पहले तो हम ये बात कर रहे थे कि नॉलेज है या नहीं है, स्किल है या नहीं है। भाई आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज भी है, स्किल भी है, टूल भी है, टेक्निक भी है, आप उसको पान बेचने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो जाएगी? क्यों जी? नो, सही जगह नहीं इस्तेमाल होगी। करना है ना, सही जगह इस्तेमाल करना है। उसको हमने खुदाई के लिए तो इस्तेमाल नहीं करना, उसको पान बेचने के लिए इस्तेमाल तो नहीं करना, उसको हम प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल करेंगे, प्रोजेक्ट के कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे और प्रोजेक्ट के मकासद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे।
तब वो सही जगह पे इस्तेमाल होगा। अगर हम उस स्किल को इधर उधर इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं होगी, वो शायद ऑपरेशंस मैनेजमेंट होगी या कुछ और होगा, और वो भी आप गलत जगह पे उस चीज को फिट करने की शायद कोशिश कर रहे हो। कुछ जगहों पे शायद चल भी जाए। बहुत से स्किल्स ऐसे हैं जो ऑपरेशन से मिलते जुलते हैं, तो ऑपरेशंस के काम बहुत से आप शायद इससे कर लें, लेकिन बहुत से टूल ऐसे होंगे जो ऑपरेशंस में यूजलेस हैं, जो उसके अंदर इस्तेमाल हो ही नहीं सकते। ओके, अगर यहां तक बात समझ आती है तो हमने ये क्या कहा, हमने कहा जी एप्लीकेशन करनी है इन चार्जों की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, नॉलेज की, स्किल्स की, टूल्स और टेक्निक्स की, ओनली ऑन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज टू मीट, मकसद क्या है, मकसद ये है टू मीट द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। अगर कोई ऐसी प्रोजेक्ट की भी एक्टिविटी है जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, तो उसके ऊपर भी ये वाले स्किल्स इस्तेमाल करना, नॉलेज इस्तेमाल करना, यूं ही समझ लीजिए कि गलत है, गुनाह है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर से हाईलाइट कर रहा है कि एनीथिंग विच इज आउट ऑफ स्कोप, वो क्रिमिनल है, उसके ऊपर काम किया जाए। आप प्रोजेक्ट के गार्ब में घर के काम नहीं कर सकते। आप निकले हैं प्रोजेक्ट के लिए कोई चीज लेने और घर की सब्जी नहीं ला सकते उसमें से, या प्रोजेक्ट के फंड में से आप अपने जाती काम नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद है कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को करने के लिए मैं इस नॉलेज, स्किल्स, टूल्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करूं तो होगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अदरवाइज दिस इज नॉट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नाउ पीएमआई जो ओवर एवॉल्व हुई है बड़ी, और मतलब अब तो 5th एडिशन है और 6th आने वाला है, और मैं इसको फॉलो कर रहा हूं 1st एडिशन से ऑनवर्ड्स। और मैं आपको बताऊं कि हर बार जब ये रिवाइज होती है तो दिल को एक तसल्ली सी होती है कि यार ये इसके अंदर एक जो एक सुकम था या एक खामी थी या एक चीज जो इतनी क्लियर नहीं थी, अब इन्होंने और क्लियर कर दी। लेकिन जो कोई भी स्टैंडर्ड इन्वोग होता है, जो कोई भी वर्जन उसका इन्वोग होता है, यू हैव टू सरेंडर टू दैट, यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, डोंट फाइट विद दिस स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कोई मतलब आपका कंपिटेटर नहीं है, कोई उसकी नौकरी नहीं आपकी लेके जा रहा, ये तो सिर्फ आपको बता रहा है कि क्या गुड प्रैक्टिसेस हैं। तो खुदा के वास्ते इसको गुड प्रैक्टिसेस को समझने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप इससे लड़ाई झगड़ा डाल दें कि ये गलत कह रहा है, ये अंग्रेज पता नहीं क्या लिखता रहता है। ये भी मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उनको ये तकलीफ बहुत होती है कि अंग्रेज ने क्यों लिख दी है। तो मैं उनको ये कहता हूँ, तुम इतने लायक होते, इतने अक्लमंद होते तो तुम लिख लेते मेरे भाई। जब तुम लोग निकम्मे पैदा हुए और कोई काम ही नहीं आज तक करके दिया, तो फिर अंग्रेज को गालियां क्यों देते हो। एंड सेकेंडली, जिनका ये ख्याल है कि ये अंग्रेज ने लिखी है, तो ये गलत ख्याल है, ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मिलकर लिखी है। मैंने शायद आपको बताया था मेरी अपनी कंट्रीब्यूशंस हैं इसके अंदर, और बहुत से लोग हैं पाकिस्तान से, मैं कुछ 100-150 बंदों को तो जानता हूं जिन्होंने ये इन स्टैंडर्ड्स को लिखने में कोई ना कोई किरदार अदा किया। तो मेरा मतलब है हमारी कंट्रीब्यूशन हैं बीच में, चाइनीज हैं, इंडियंस हैं, इर्द गिर्द के हर तरह के लोग हैं। आप इसके देखें पीएमबीओ के आखिर में पूरा एनेक्स लगा हुआ है जिसमें सारों के नाम तो नहीं लेकिन की कंट्रीब्यूटर्स के नाम है, और वो भी काफी सारे नाम है, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। और उसके अंदर आपको हमारे बहुत से पाकिस्तानियों के नाम नजर आएंगे, मेरा नाम भी उसके अंदर है। तो मेरा मतलब है हम तो हमारा तो बाइन है भाई, हम तो इसमें शामिल हैं। और आप चाहें, अगर आप इतने बड़े कोई 30 मार खान हैं, जो शिकवा कर रहा है बंदा, वो अगर इतना बड़ा कोई 30 मार खान है, तो भाई आ जाओ मैदान में, आप भी बीच में कंट्रीब्यूट करो, आपको भी लग पता जाए कि ये क्या चीज होती है। इनका एक स्टैंडर्ड है पीएमआई का, जो मैंने शायद आपको बताया था, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसका जब 1st एडिशन आया तो मुझे जाती तौर पे इससे बड़ा शदीद इख्तलाफ था। ये कैसे हो सकता है, ये तो ऐसे गलत लिखा हुआ है, ये वो ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। तो मैं बहुत वोकल था और मैं पीएमआई के ऊपर मैंने चढ़ाई कर दी। मैंने कहा तुम लोगों को पता नहीं चलता, तुम लोग खुद ही स्टैंडर्ड बना लेते हो, किसी को बताते नहीं हो, पूछते नहीं हो। उन्होंने कहा भाई क्या तकलीफ है तुम्हें। मैंने कहा जी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उन्होंने कहा अच्छा आ जाओ फिर मैदान में आओ। मैंने कहा जी बिल्कुल हाजिर जनाब। मैंने उन्हें कांटेक्ट किया, मैंने कहा जी जब इसका नेक्स्ट स्टैंडर्ड लिखा जाए तो मुझे उसमें इन्वॉल्व करना है। उन्होंने जब वो स्टैंडर्ड निकलना था, उन्होंने उससे पहले जब उसकी एम्प्लॉयमेंट हो रही थी, उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा जी आप बताएं आप क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा जी मैं तो इसका प्रोग्राम मैनेजर बनना चाहता हूँ, मैं ये काम सारे का सारा मैं कराऊंगा क्योंकि आप लोग गलत करते हो। उन्होंने वो इंटरव्यू का सारा प्रोसेस चला और सारा हिसाब किताब, वो मतलब कई इंटरव्यूज हुए, सब कुछ हुआ। आखिर में वो जो टॉप 3 में मेरा नाम आ गया।
जब सिलेक्शन की बारी आई तो उनका जो लाजमी बात है कि मैंने पाकिस्तान से जाना होता था, उसको ज्यादा टिकट उन्हें खर्च करना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि वो ये चाहते हैं कि जो बंदा इसको प्रोग्राम को मैनेज करे वो उनके एक्सेसिबल हो, जब चाहें वो उसे कॉल कर सकें, बुला सकें। तो उन्होंने उस हवाले से एक और था, टॉम क्यूटन था, उसको सिलेक्ट कर लिया और उन्होंने मुझे कहा कि जनाब आप बताएं कि आपको हम एक और सीट ऑफर करते हैं, वो आप लेना चाहते हैं तो बताएं। उसी स्टैंडर्ड के ऊपर जो क्वालिटी का काम था उसके लिए उन्होंने मुझे क्वालिटी इंचार्ज बना दिया। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं कोर टीम में था, कोर टीम में टोटल 12 लोग थे। जब पहली दफा मैं पहली मीटिंग में उनके साथ पहुंचा तो मैंने तो मीटिंग में कोई बात किसी को करनी ही नहीं दी। मैं तो उसके ऊपर खूब गुबार निकाला कि ये क्या है, वो क्या है। वो सारे, उनमें से कुछ लोग, आधी से ज्यादा टीम जो थी वो पिछले स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर चुकी थी और आधे नए लोग थे। तो सब मेरा मुंह देखेंगे, यार ये क्या इसने शुरू कर दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि थोड़ा बहुत उन्होंने जवाब भी दिए, लेकिन दे डिड नॉट डिस्करेज मी। शाम को जब खाने के टाइम के ऊपर वो, उनमें सबसे जो बुजुर्ग आदमी था वो मुझे साथ ले गया साइड पे, कहता है यार देखो बात मैं तुम्हें पूरी बताता हूँ। उसने कहा जी बात ये होती है कि जब एक स्टैंडर्ड लिखा जाता है पहली दफा तो उसमें जितने लोगों की कंट्रीब्यूशन होती है उतनी ही डाली जा सकती है। बेशक इसके अंदर गलतियां होती हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वी हैव एग्रीड कि ये जो कुछ लिखा गया है हम इसको फॉलो करेंगे। उसके बाद आप जैसे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और गलतियां बताते हैं, वो हम नोट करते रहते हैं। अब नई टीम गैदर हुई है, ये सारी गलतियां जो हैं इनको दे दी जाएंगी, ये लोग इनको अकोमोडेट करके नया स्टैंडर्ड बनाएंगे। लेकिन ये भी मुमकिन नहीं हो सकता कि सारी गलतियों को कैटर फॉर कर लिया जाए। हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं और जो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको एड्रेस करते हैं इमीडिएटली। और अगर हमारे पास इतना ज्यादा काम हो कि सारी चीजें ना की जा सकती हो तो हम जो गैर जरूरी छोटी चेंजेस हैं उनको अगली दफा के लिए छोड़ देते हैं और उसे फॉरवर्ड कर देते हैं अगली टीम के पास। तो अगले 4 साल बाद जब अगला एडिशन लिखा जाएगा तो उसमें वो तब्दीलियां आ जाएंगी। तो मतलब ये सारा मैकेनिज्म समझने के बाद फिर मुझे थोड़ा चैन आया और उसके बाद मैं ये समझा कि जनाब ये काम कैसे चलता है। अब मुझे उस पूरे सिस्टम के अंदर गलतियां अब भी नजर आती हैं, लेकिन कोई उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी वो अंग्रेज ने अपने घर में बैठ के, कोई बिल क्लिंटन ने खुद ही लिख दिया था, उसने खुद कुछ, किसी ने कुछ नहीं लिख दिया था। ये एक कॉम्बिनेशन में बैठ के ये लोग बात करते हैं। तो पीएमआई ये रिकमेंड करती है कि देर आर, जो अभी 5th एडिशन की हद तक ये चेंज होता रहता है। पहले 42 प्रोसेसेस हुआ करती थी, अब 47 प्रोसेसेस हैं। क्या पता 6th एडिशन में और कुछ तब्दीलियां भी आ जाए। इन 47 प्रोसेसेस को पीएमआई ने 5 ब्रॉड प्रोसेस ग्रुप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और क्लोजिंग। इन 5 मेजर प्रोसेस ग्रुप्स में इन 47 प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और ये 47 प्रोसेस, दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जिसका जहां काम है, जितना काम है, उतनी उतनी चीजें बटी हुई हैं। तो कहीं पे कम प्रोसेस भी हो सकती हैं, कहीं ज्यादा भी हो सकती हैं, मगर 5 डब्बे हैं, 5 प्रोसेस ग्रुप्स के डब्बे हैं जिनमें ये 47 प्रोसेसेस किसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। ये जनाब आपकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, क्लोजिंग और इनिशिएशन। ओके, यहां तक अगर क्लियर है तो मैं आपको इन 5 प्रोसेस ग्रुप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा। मैं जो बात करूंगा, मैं जब इनिशिएशन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जो बातें करूंगा, उसका ये मतलब नहीं लेना कि ये जो मैंने 3 या 4 या 5 बातें की हैं ये इसके प्रोसेसेस हैं, नहीं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इनिशिएशन में होता क्या है, एक लेमैन की लैंग्वेज में वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इनिशिएशन में क्या करते हैं, प्लानिंग में क्या करते हैं, मोटा मोटा। उसके बाद हम इन चीजों की तो बड़ी तफसील में जाएंगे आगे आगे। फॉर द टाइम बीइंग इनिशिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट जो है उसको अगर ले लिया जाए तो उसके अंदर जो कुछ होता है, अभी आपके सामने आ जाएगी स्क्रीन, एक मिनट। नेट लगता है कुछ थोड़ा सा स्लो है। एनीवेज मैं बात शुरू करता हूं, 3 देर में शायद कुछ आई, जहां आ गया था, राइट।
ओके, हाँ मैं ये बात कर रहा था कि इनिशिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं। आप यूं समझिए कि इनिशिएशन इज समथिंग लाइक के आप प्रेप कर रहे हैं, एक चीज को तैयार कर रहे हैं। अभी आपने उसके ऊपर काम शुरू नहीं किया, अभी प्लानिंग भी शुरू नहीं की, आप सिर्फ उसकी जो इनिशियल तैयारियां हैं ये वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये काम करने के लिए हमें चंद चीजों का ख्याल रखना होगा। ये जो काम हम करने चले हैं, क्या ये काम ऑर्गेनाइजेशन के फायदे का है, ऑर्गेनाइजेशन के मकासद को पूरा करता है या नहीं करता, और जिसके लिए ये चीज बनाई जा रही है, जो मेरा अल्टीमेटली कस्टमर है, क्या उसकी जरूरियात को भी पूरा करता है या नहीं करता। अगर तो इस सवाल का जवाब हो नो, तो फिर तो समझ लीजिए कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल बेकार है, इसको करने का कोई फायदा नहीं है। दिस इज द लिटमस टेस्ट। और ये काम देने वाले को भी सोचना चाहिए और काम लेने वाले को भी सोचना चाहिए कि भाई हम ये कर क्यों रहे हैं। अभी इस वक्त अगर आप गौर करें, आप कंट्री लेवल पे भी देखें, तो देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ चल रहे हैं, कंट्री के बेनिफिट्स के खिलाफ चल रहे हैं, कंट्री की साख खराब करने के लिए चलाए जा रहे हैं, और वो गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे होते हैं। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि एक चीज जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ है, जो एंड यूजर है आपका, जो आपकी आवाम है, उसके खिलाफ है, और आप ऐसा प्रोजेक्ट ऐसे माहौल में कैसे कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। ये अभी अब अगर गवर्नमेंट लेवल की बात आपको, ये फ्लॉ आपको नजर आ रहा है, ये है फ्लॉ, होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी तो ऐसे ही ड्रामे हो रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर आप एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ले लें, आप मुझे बताएं कि सेठ साहब जो उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं, वो किसी को इजाजत देंगे कि कोई ऐसा काम करे जो डेट्रीमेंटल हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए? वो उस बंदे को नौकरी से निकाल नहीं देंगे, वो उसको जेल में नहीं डलवा देंगे। तो कहने का मकसद है कि दिस चेक एंड बैलेंस सिस्टम हैज टू बी देयर, कि बिफोर अ प्रोजेक्ट इज इनिशिएटेड, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइनमेंट और कस्टमर नीड के साथ उसकी मुताबिकत देखना, अश्योर करना लाजमी है। एक बात। दूसरी बात कि जो बंदा भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इस काम को करने का, उसको इस काम की समझ होनी चाहिए। समझ से मतलब मेरा यह है कि मोटी मोटी उसको अंदाजा होना चाहिए मैं करने क्या जा रहा हूं। हमारे यहाँ ऐसे भी शहर के बच्चे हैं कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर तो हैं, लेकिन उनसे पूछें आपका प्रोजेक्ट क्या है, तो वो आपको कभी डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। और मैं ये मजाक नहीं कर रहा, दिस इज प्रैक्टिकली, दिस इज वेरी मच, आई हैव सीन इन माई ओन लाइफ विद माई ओन आईज। एक दफा एक इनका प्रोजेक्ट था, क्या नाम है, एनवायरमेंटल डिवीजन वालों का। उनको फंडिंग मिलती है, इसमें गवर्नमेंट में तो प्रोजेक्ट ही वो होता है जिसकी फंडिंग मिलती है। खुद तो इस गवर्नमेंट ने कभी कुछ किया ही नहीं, किसी गवर्नमेंट ने कभी कुछ नहीं किया पाकिस्तान में। तो इनको जब कोई भीख देता है तो फिर उस भीख से ये काम करते हैं, और उस भीख से वो काम करते हैं जो भीख देने वाले की जरूरत होती है। आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो जाएं भाड़ में। तो जनाब वो साहब जो थे, वो प्रोजेक्ट शुरू हो गया, उसके ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो लाजमी बात है इंटरनेशनल डोनर एजेंसी के अपने ऑब्जेक्टिव्स थे कि इनको पैसे दे रहे हैं तो इनसे यही काम करवाना है, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की मुताबिकत रखते हो या ना रखते हो, दैट डज नॉट मैटर। तो जनाब वो जो कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर वहां पे रखा गया, वो किसी वजह से काम छोड़ गया, और जब वो नया नया रखा जा रहा था और उस वक्त मेरे सामने वो केस आया, उन्होंने कहा जी ये प्रोजेक्ट है, बड़ा मजेदार है, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। मैंने कहा जी बड़ी जबरदस्त बात है, जरूर करें आप लोग। तो उसके ऊपर कुछ काम हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन तकरीबन 1-1.5 साल के बाद उनकी तरफ से मुझे मैसेज आया कि जनाब हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो बड़ी बुरी तरह से फंस गया है। मैंने कहा अच्छा कहाँ फंस गया है? उन्होंने कहा जी बात ही अभी शुरू ही नहीं हुआ। क्या मतलब शुरू ही नहीं हुआ? आप तो 1-1.5 साल पहले कह रहे थे कि हम शुरू करने लगे हैं। हाँ जी वो तो कह रहे थे, कागजों में तो चल रहा है, लेकिन फिजिकली ऑन ग्राउंड शुरू नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रोजेक्ट मैनेजर साहब छोड़ के चले गए थे। ये एक और बहुत बड़ा
इशू है कि प्रोजेक्ट मैनेजर साहब जो थे वो अपने सीने में दफन करके ले गए, सारा कुछ अपने साथ ही ले गए, कागज में कुछ भी नहीं था। वेरी गुड। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ जी कि हमने नया प्रोजेक्ट मैनेजर हायर कर लिया। वेरी गुड जी। कौन है वो? उनको पता है सारा कुछ। उन्होंने कहा जी वो जरा गौर कीजिएगा, एनवायरमेंट डिवीजन में सेक्रेटरी हुआ करते थे, रिटायर हो गए, उनको हमने यहाँ रखा। आप गवर्नमेंट ऑफिसर की कैपेबिलिटी से अच्छी तरह वाकिफ हो सकते हैं कि वो क्या जानता होगा और क्या करता होगा। उन साहब को उन्होंने रख लिया। मैंने उन्हें कहा कि जी अच्छा, आपको मैं इस मुश्किल से निकाल सकता हूं, आप जरा अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को साथ लेके मेरे पास आ जाएं। तो पहले तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर साहब चूंकि सेक्रेटरी थे वो अपने जमाने के, तो उन्होंने पसंद नहीं फरमाया कि वो एक छोटे आदमी से मिलने के लिए तशरीफ लाएं। उसके बाद वो कहते जी नहीं, ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आपसे मिल लेता है। मैंने कहा सॉरी, अगर मसला हल करवाना है तो जो बंदा रेलेवेंट है वही मुझसे बात करे। तो वो कोऑर्डिनेटर और प्रोजेक्ट मैनेजर साहब तशरीफ ले आए और इधर मेरे सामने मेरे ऑफिस में ही बैठे हुए थे। तो मैंने पूछा जी हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है, बताइए आपका प्रोजेक्ट क्या है। तो उस लड़के ने, जो कि कोऑर्डिनेटर था, उसने बोलना शुरू किया। मैंने कहा तुम चुप करो, तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं है। मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर साहब की तरफ देखा, मैंने कहा जी बताइए आपका प्रोजेक्ट क्या है। और वो कोई 3 महीने लग गए उस प्रोजेक्ट पे, वो काम कर रहे थे 3 महीने से, वो हराम की तनख्वाह खा रहे थे। आप यकीन कीजिए उनको प्रोजेक्ट के बारे में अलिफ बे और पे का नहीं पता था, ये प्रोजेक्ट है किस चीज का। तो जनाब ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ और पूरी दुनिया में इस किस्म के सिनेरियोज बड़े एग्जिस्ट करते हैं कि अगले को पता ही कुछ नहीं होता हम कर क्या रहे हैं, मोटा मोटा भी नहीं पता होता। दूसरी बात यह है, इसी पॉइंट के अंदर एक दूसरा पॉइंट चीज ये भी है कि भाई ये जो आप काम करने चले हैं, अगर आपको उसके स्कोप का अंदाजा भी है थोड़ा बहुत, तो क्या आपको ये पता है कि कौन कौन लोग होंगे जो इस प्रोजेक्ट के होने की वजह से मुतासिर हो सकते हैं, या वो कौन लोग हैं जो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं? फंडिंग देने वाला, डोनर एजेंसी, ये वो, और जो मुतासरीन है, मतलब जिस एरिया में आप ये काम करना चाह रहे हैं वहां से उन लोगों को शायद हटाना पड़े, उन लोगों को क्या तकलीफ होगी, उनकी तकलीफ का क्या इजाला किया। तो ये सारे लोग जो या तो आपके प्रोजेक्ट पे असरअंदाज हो सकते हैं या आपका प्रोजेक्ट इनकी वजह से मुतासिर हो सकता है, ये या जो आपके प्रोजेक्ट की वजह से मुतासिर हो सकते हैं, ये सब लोग आपके स्टेक होल्डर हैं। क्या आपने उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को समझ लिया? हमने तो बात भी नहीं की स्टेक होल्डर से, हम तो पहचानते नहीं है स्टेक होल्डर को। हम तो कहते हैं हमारे बॉस ने हुक्म दिया ये सड़क बना दो, तो अब तो मैंने सड़क बनानी है, अब आगे एक बंदा बेशक लेट जाए कि जी मुझे मार के गुजर सकते हो तो गुजरो, तो मैं उसे मार दूंगा। तो स्टेक होल्डर की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को हमने अपनी जिम्मेदारी में लिया ही नहीं। तो ये एक जरूरी एलिमेंट है, क्योंकि जो काम मुझे दिया गया हो, आप यकीन करें कि वो किसी और के इंटरेस्ट के मुताबिक है वो काम। मैं ये नहीं कह रहा कि वो काम नहीं करना चाहिए। मुझे स्टेक होल्डर से बात करके उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को समझ के, हो सकता है जरा सी रत्ती बराबर ट्विकिंग करके हम इस स्टेक होल्डर को भी ऑन बोर्ड ले लें, वो भी हमारे साथ खड़ा हो, नारे मार रहा हो कि यार ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, ये करना चाहिए। सिर्फ उसकी जरा सी नीड है जिसको हमने एडजस्ट करना है। और ये जो नीड्स और एक्सपेक्टेशंस हैं, ये जब लेके मैं अपने बॉस के पास जाऊंगा तो उसको भी इस बात का एहसास होगा यार कि जो हम जिस तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ये छोटी छोटी चीजें एंटरटेन शायद हो सकती हैं, और अगर नहीं भी हो सकती तो तब मुझे कम से कम ये तो पता होगा कि इस बंदे को कैसे समझाया जा सकता है या इसको कैसे बताया जा सकता है कि जनाब ये मेरे प्रोजेक्ट के स्कोप में नहीं आता, इसको करने के लिए एक और प्रोजेक्ट किया जाएगा या आपकी मसाइल को हल किसी और तरीके से किया जा सकता है। ये जगह नहीं है जहां पे आगे आपने शोर मचाना है। खैर एनीवेज जी, तो स्टेक होल्डर्स की नीड्स और उनकी पहली बात, स्टेक होल्डर्स, ये फोर्थ पॉइंट को देखिए, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना और उनकी जरूरियात को समझना, और उनकी जरूरियात और जो नीड्स और एक्सपेक्टेशंस है सेकंड पॉइंट में, उनको प्रिलिमिनरी स्कोप स्टेटमेंट में इंक्लूड करना, उनको समझ में अपनी इंक्लूड करना। और ये भी मुझे पता होना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट मैं करने चला हूं ये कितना रिस्की है, और इसमें मोटे मोटे बड़े बड़े लेवल के कौन से रिस्क हैं और क्या अजम्पशंस हैं जिसके ऊपर ये आपने पूरा पहाड़ खड़ा करना है। कुछ चीजें, अजम्पशंस क्या होती हैं?
assumptions जहां मुझे किसी चीज के बारे में रियल डाटा ना मिल रहा हो, फैक्ट्स अवेलेबल ना हो, तो मैं कहता हूं ओके लेट्स एज्यूम कि एक्स अमाउंट होगी। वो जो एक्स है वो मैंने अपने अंदाजे से लगाई है, लेकिन वो सही नहीं है, वो गलत भी साबित हो सकती है, वो सही भी साबित हो सकती है। इसका मतलब है वो एजम्पशंस है। अगर मैं एजम्पशन ना लगाता तो मैं आगे प्लानिंग ही नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे जरूरत पड़ी कि मैं एजम्पशंस लगाऊं। लेकिन मुझे पता तो हो कि कहां कहां एजम्पशन लगी है, क्योंकि जहां जहां एजम्पशन आपने लगाई होगी वहां वहां रिस्क है कि ऐसा शायद ना हो सके। फिर जनाब इन सारे कामों के अलावा जो एक बड़ा काम यहाँ पे हम करते हैं, सबसे बड़ा काम, वो है प्रोजेक्ट का चार्टर अप्रूव होना। प्रोजेक्ट का चार्टर वो हुक्मनामा है जो प्रोजेक्ट मैनेजर को एम्पावर करता है कि वो, और जिम्मेदारी उसके शोल्डर पे डालता है ताकि वो अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करे और काम शुरू करे। मगर इसका ये कतन मतलब नहीं है कि उसने अब आंखें बंद कर लेनी है, कान नाक बंद कर लेने हैं और बस काम शुरू कर देना है। इट इज नॉट, वी आर नॉट एंटरिंग इनटू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट डायरेक्टली, जो कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में अक्सर ये समझा जाता है कि जिस दिन प्रोजेक्ट असाइन हुआ है अगले दिन से खुदाई शुरू हो जाएगी। नाउ गिव सम टाइम टू द प्रोजेक्ट मैनेजर टू प्लान हिज थिंग्स। उसने अपने रिसोर्सेज मोबिलाइज करने हैं, उसने देखना है क्या चीज कैसे की जानी है, उसके सीक्वेंसेस सेट करने हैं। हम ये समझते हैं जी PC1 बन गया है, अब तो बस कोई जरूरत ही नहीं है, अब बस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करो, एंड दिस इज अनदर क्रिमिनल एक्ट। PC1 इज अ वेरी ब्रॉड लेवल प्लानिंग, वो सिर्फ अप्रूवल के लिए मोटी मोटी प्लानिंग की जाती है। उसकी बुनियाद पे कंस्ट्रक्शन या काम कोई भी प्रोजेक्ट कैसे शुरू हो सकता है कि, तो इसका मतलब है कि चार्टर में आप जिस बंदे को देंगे वो जब उस चार्टर के मुताबिक काम करना शुरू करेगा तो पहले तो प्लानिंग करेगा, और प्लानिंग का बड़ा डेलिब्रेट काम है। तो इनिशिएशन में ऑन ग्राउंड एक्चुअली तो शायद 47 में से 2 ही प्रोसेसेस हैं, लेकिन यहां मैंने 5 पॉइंट आपको बताए हैं, और ये सारी के सारे वो चीजें हैं जो हमें इनिशिएशन के अंदर फुलफिल करनी है। तो प्लीज do not relate them exactly with the processes. I'm not talking about the processes. I'm talking about what to do in initiation. Similarly, अगर आप आगे चलें प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग में देखने में ये कोई 8-10 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं, लेकिन दरअसल ये 8-10 पॉइंट नहीं है। इसके अगर इफ आई एम नॉट रियली रॉन्ग, देयर आर 24 प्रोसेसेस इन प्लानिंग। प्लानिंग इज द मोस्ट डिटेल्ड ओरिएंटेड वर्क। जी रिजवान साहब। सर सॉरी जस्ट आप इनिशिएशन में सर जो फिजिबिलिटी वगैरह कहते हैं ये कहाँ है? बिजनेस एनालिसिस इनिशिएशन से पहले आता है या इसमें करते हैं PC2 वगैरह? सर फिजिबिलिटी कई जगहों पे होती है और कई चीजों की होती है, लेकिन जो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी है वो पहले हो चुकी होगी। अगर प्रोजेक्ट फिजिबल होगा तभी चार्टर देने का वक्त आया ना, मतलब ये तो पहले फैसला हो चुका है कि ये प्रोजेक्ट जो है करना है, ये पहले प्री प्रोजेक्ट हो चुका है। मेरा मतलब है कि आपने अखबार किसी ने, हम आपका जो वेंडर है, सॉरी जो आपका कस्टमर है, उसने अखबार में इश्तिहार दिया होगा, आपने बिड किया होगा, वहां पे आपने देखा होगा, जो कुछ भी देखना था वहां देखा होगा। अब तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया हुआ है, अब तो प्रोजेक्ट करने का हुक्मनामा दिया जा रहा है। तो इस जगह पे हम एज सच फिजिबिलिटी तो नहीं करते, फिजिबिलिटी तो इससे पहले हो चुकी होती है और वो बिजनेस एनालिसिस वाले लोग करते हैं। लेकिन अभी जब हमने ये प्लान इनिशिएशन में कहा ना कि जनाब ये आप देखें कि ये अलाइनमेंट है कि नहीं है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ कंफर्मेशन, इट इज अ काइंड ऑफ फिजिबिलिटी। मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि नहीं जी ये तो अलाइनमेंट हमारे ये साथ मिलती ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, व्हाई आर वी डूइंग, चैलेंज कर सकता है वो, क्योंकि जो फिजिबिलिटी जब की गई थी उस वक्त शायद वैलिड हो, अब शायद वैलिड ना हो। जब प्रोजेक्ट में शुरू करने लगा हूं तो मुझे अगर नजर आता है कि ये चीज अभी वैलिड नहीं है, तो आई कैन हाईलाइट दिस फैक्ट इन फ्रंट ऑफ माय बॉसेस एंड दे माइट फिक्स द प्रॉब्लम और दे विल गिव मी अ सॉल्यूशन फॉर दैट ना। लेकिन ये कि मैं एक चीज गलत प्लान हुई है या अभी गलत है, पहले प्लान ठीक हुई थी और मुझे चूंकि हुक्म मिल गया है और मैं आंखें नीचे करके और काम शुरू कर दूं, तो वो ब्लंडर में ही उसने टर्न आउट करना है।
बाकी जहां तक फिजिबिलिटी का ताल्लुक है, पूरे प्रोजेक्ट की तो मैंने बात कर ली। छोटी मोटी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तकरीबन पूरे प्रोजेक्ट के दौरान होता ही रहता है। कोई भी डिसीजन लेना हो, आप उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, उस चीज की फिजिबिलिटी देखते हैं, कई जगहों के ऊपर बार बार आपको वो टूल्स नजर आएंगे। राइट जी। प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग के अंदर आप यकीन करें कि दिस इज द मोस्ट इलेबोरेट प्रोसेस ग्रुप। ईच एंड एवरीथिंग डाउन टू, जिसे कहते हैं कि जी बॉटम मोस्ट आइटम हैज टू बी डिजाइंड, प्लान, कैलकुलेटेड, मतलब हर काम तफसील के साथ, और जितनी तफसील मुमकिन है। मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूं इस इतनी तफसील से हर चीज को प्लान करने को, कि मसला ये है जी कि हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और प्रोजेक्ट के बारे में हमें पता है कि ये एक टेम्परेरी एंडेवर है, और हमें पता है कि यहाँ अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा आई है। मैं जो मर्जी प्लान कर लूं, होना शायद कुछ और भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ और ही होगा, मैं ये कह रहा हूं कुछ और भी हो सकता है। सो मैं जितना भी प्लान कर लूं, उसके बावजूद इस बात के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि शायद कुछ और हो जाए। उसको मैं केटर करूंगा रिस्क में। लेकिन अब मैं ये कहूं कि चूंकि मुझे पता नहीं है कि क्या होना है, तो इसलिए प्लान करने की क्या जरूरत है, चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग द जॉब, बाद में देखी जाएगी। ये रिएक्टिव थिंकिंग है। ये आमतौर पे अडॉप्टेड है हमारे यहाँ, कि मतलब आप कहते हैं कि जी या इस कमरे में आग लग सकती है, आप कहते हैं अच्छा जब होगा तो देखा जाएगा। लगी तो नहीं ना, आज तक तो आग नहीं लगी। तो भाई अगर नहीं लगी तो इसका मतलब है कि अब आपकी जिंदगी में भी कभी नहीं लगेगी। तो वो कोई इकदाम करने को तैयार ही नहीं है, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेता है कि नहीं नहीं मेरे दौर में तो नहीं लगेगी, मैं चला जाऊं फिर बेशक पूरा इदारा जल जाए। भाई खुदा का खौफ करो, आपके दौर की बात नहीं हो रही, आपके बचाव की बात नहीं हो रही, ये इदारे के बचाव की बात हो रही है, ये प्रोजेक्ट का या ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क है। तो लोग उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के बजाय जाती पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, डिफेंसिव मैकेनिज्म पे चले जाते हैं। तो कहने का मकसद है कि हमने जब प्लानिंग करनी है, वी हैव टू बी हाईली प्रोएक्टिव। हाईली प्रोएक्टिव। जो नहीं भी सोचा जा सकता उसको भी सोचने की कोशिश करनी है, उसको भी प्लान करने की कोशिश करनी है, और अल्टीमेटली हम इस काबिल हो पाएंगे कि काफी हद तक जो चीजें होने के इम्कानात हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। और आल्दो मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि फिर भी कुछ ऐसा जरूर, कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर हो सकता है जो मैंने ना सोच पाया हूं। लेकिन उसके बावजूद बहुत सी चीजें, 80 to 90% जो केसेस हैं, वो मैं अपने दिमाग में प्ले अराउंड कर चुका हूं, और मैं उसके लिए तैयार हूं, मैं उसका हल निकाल चुका हूं। तो ऐसी सूरत में प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे मक्खन कटता है। आपको पता होगा इधर रखूंगा तो ये होगा, इधर रखूंगा तो ये होगा। तो मतलब अ वेरी गुड प्रोएक्टिव माइंड के साथ जब आप प्लानिंग करेंगे तो ज्यादातर चीजें वैसे ही टर्न अप करेंगी, इस बात का इम्कान ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल बेवकूफों की तरह, जो कि आम सोच है कि भाई जब होना ही वो नहीं है, पक्का नहीं है आपको पता, तो फिर छोड़ो परे, आराम करो। मतलब मैं ऐसा भी जानता हूं कि आपने देखा होगा ऑफिस में एक पेंडिंग ट्रे होती है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू होता है, एमरजेंट इशू होता है, जो निकम्मे अफसरान होते हैं उसे पेंडिंग की ट्रे में डाल देते हैं। से कि एक चीज है और बहुत बड़ी क़यामत आने वाली है, अगर हमने 24 घंटे में इस बात के ऊपर फैसला ना किया, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि इसको पेंडिंग ट्रे में डाल दिया है मैंने, अब मैं 24 घंटे तक इसको देखूंगा भी नहीं, जो होना है वो हो जाएगा, वो मसला खत्म हो जाएगा, जो डैमेज उसने करना है वो कर लेगा, मसला खत्म हो जाएगा। एक ये सोच है। तो आप मुझे बताइए कि इससे ज्यादा बुरी रिएक्टिव सोच और क्या हो सकती है, कि जो होना है हो जाए, बाद में देख लेंगे। लाजमी बात है जब वो जो हो जाएगा तो नुकसान तो बहुत बड़ा कर जाएगा, और लाजमी बात है कि वो गवर्नमेंट के पैसे जाने हैं, आपके इदारे के पैसे जाने हैं। तो आप कहते हैं जी मेरा तो जाती, वही डिफेंसिव सोच आ गई कि मेरी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा, भाड़ में जाए, ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा होता है तो हो जाए। दिस इज बैड थिंकिंग। तो बुनियादी तौर पे अगर मैं प्रोएक्टिव होऊंगा
तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अखराजात जो इस तरह से होने हैं वो कई बहुत हद तक घटा दूंगा। मिसाल के तौर पे आग लगने का था, मैं सिर्फ 5,000 रुपए का फायर एक्सटिंग्विशर लाके लगाना है सिर्फ आपने, और कुछ भी नहीं करना। वो जो लाखों का नुकसान करने को तैयार है, उस गधे को कोई ये समझाए कि भाई 5,000 रुपए का ये फायर एक्सटिंग्विशर आता है, ये लगा लो यहाँ पर, और अगर आग लगती है तो उसी वक्त बुझ जाएगी, थोड़ा सा नुकसान होगा ना, 5-10 हजार का ही नुकसान हो जाएगा, चलो मान लिया, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन उसको बुझा तो देंगे, खत्म तो कर लेंगे। तो कहने का मकसद है कि ये चीज लोग प्रोएक्टिव होकर नहीं सोचना पसंद करते, और प्लानिंग काम ही सारा प्रोएक्टिविटी का है। और इसमें सिर्फ रिस्क की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें हर जहत जो है प्रोजेक्ट के बारे में, उसका स्कोप है, टाइम है, कॉस्ट है, क्वालिटी है, ह्यूमन रिसोर्स, कम्युनिकेशन, प्रोक्योरमेंट, रिस्क, पता नहीं क्या क्या, 10 डिफरेंट नॉलेज एरियाज हैं। हर एक नॉलेज एरिया को मुकम्मल तफसील, जितनी तफसील में सोचा जा सकता है उसको प्लान करना है। आप मुझे बताएं कि रातों रात आपसे प्लानिंग कराई जाती है, हाउ इज इट पॉसिबल कि आप इतनी तफसीली प्लानिंग उसके अंदर कर सकें। एट द सेम टाइम आई एम नॉट एट ऑल एडवोकेटिंग कि जनाब आप पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस कर लें। पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस होता है कि एक आदमी इतना क्या कहते हैं, बाल की खाल निकालता है, इतनी डिटेल में चीज के चले जाता है कि काम आगे बढ़ने ही नहीं देता। मैं कतन उसको एडवोकेट नहीं कर रहा। मैं समझता हूं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप लोग अक्लमंद लोग हैं, आपको पता है कि किस चीज की कितनी तह में जाने की जरूरत है, और जितनी तह में जाने की जरूरत है उतनी तह में आप लाजमी जाएंगे, उससे ज्यादा बिला वजह की तफसीलात में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। दिस इज माई बिलीफ। अगर ऐसा है तो क्या आपने उतनी तफसील से प्लानिंग की? हम लोग नादरा के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, और जब काम बड़ा कॉम्प्लेक्स था और हमें उस वक्त ये कहा गया कि ये काम जो है आप शुरू करें। हमने कहा जी बात यह है कि ये काम ऐसे नहीं है कि आसमान से उतरा है, अभी कल से हम मशीनें लगा के काम शुरू कर देंगे। इसके लिए मशीनें प्रोक्योर भी करनी पड़ेंगी, उनको पहले प्लान भी करना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा। अच्छा जी कितना टाइम चाहिए? हमने कहा जी ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये तकरीबन 3 साल का है। उस वक्त जो मेरी कैलकुलेशन थी उसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट 3 साल का है, हमें कम से कम 1 साल का टाइम तो तफसीली प्लानिंग करने के लिए चाहिए। उसके ऊपर गवर्नमेंट में एक मुसीबत मच गई कि ये कैसे लोग आ गए हैं, अजीब सी बात करते हैं, इतना टाइम कभी प्लानिंग में कोई देता है? और उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, आपको बस आप काम शुरू करें। तो नेचुरली हम लोग वही गवर्नमेंट इदारे वाली सोच और वो था, लेकिन हम करना काम सही तरह से चाह रहे थे। हमने कहा अच्छा चले हम करते हैं कुछ, लेकिन ये है कि काम शुरू करना है तो पैसे रिलीज करो। ओहो, पैसे तो गवर्नमेंट के पास हैं ही नहीं। अच्छा जी, तो पैसे देंगे तो काम होगा ना। उन्होंने कहा जी बस ठीक। अच्छा अब अगर कोई और होता, वो कहता अच्छा यार पैसे आ नहीं रहे, ये है वो है, चलो जी साड़ी तो छुट्टी हुई ना, आराम करो बैठ। हमने ऐसा नहीं किया। हमें इस बात का अंदाजा था कि गवर्नमेंट ये नखरे करेगी और ये कुछ होगा हमारे साथ। हमने क्या किया कि वो जो प्लानिंग का प्रोसेस था उसको जारी रखा। आप यकीन करें 1.5 साल तक कोई फंडिंग नहीं आई। हमें 1.5 साल का टाइम मिल गया उसकी तफसीली प्लानिंग करने का, और हम सिर सुट के वो काम करते रहे, और हमारी बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग मुकम्मल हो गई। जब एग्जीक्यूशन की बारी आई तो लाजमी बात है कि खैर वो एक बड़ी लंबी कहानी है कि वो फिर पैसे मिले कि नहीं मिले, लेकिन उसका भी कोई बंदोबस्त हमने किया। जब एग्जीक्यूशन का टाइम आया तो एग्जीक्यूशन तकरीबन मजीद हमें 2-2.5 साल चाहिए था उस काम को करने के लिए। उस जमाने में मुशर्रफ साहब आ चुके थे, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता 6 महीने में काम करके दो। ये भी होता है, ऐसा ही होता है हमारे मुल्क में या किसी भी मुल्क में फॉर दैट मैटर, 6 महीने में काम करके दो। Now the whole plan had gone for a 6. Everything has to be replanned कि इसको तेज कैसे किया जाए, क्या साफ किताब किया जाए। This is what we are here to learn about, कि चीजों को कैसे हैंडल किया जा सकता है अक्लमंदी के साथ। लेकिन फिर वही बात है, प्लानिंग के बगैर कोई नहीं काम कर। अगर आप खोपड़ी का ही काम है, अगर इसी को इस्तेमाल करना है, अल्टीमेटली भी करना है, बाद में भी करना है, पहले भी करना है, तो भाई पहले से ही कर लो, और बाद में जब क़यामत आएगी। अब हमने इतनी अच्छी प्लानिंग की हुई थी, उसकी वजह से हमारे लिए काम आसान था, क्योंकि हमने उसकी तमाम जहतें सोच रखी थी। ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे। सो वी क्विकली फाउंड आउट द सॉल्यूशन
and we did manage that project. Although उसमें कुछ फ्लॉज फिर भी थे, और अभी तक आप देख रहे हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना किसी चीज का, उतना उसकी लॉन्ग लाइफ होगी। मैं ये इस बात से कह रहा हूं कि अगर आप देखें इस वक्त आपकी कौम के मोस्टली जो इदारे हैं वो कोई नोज डाउन जा रहा है और कोई जमीन में गड़ चुका है और किसी के साथ कुछ हो रहा है। नादरा को आप देखिए, भले उसके साथ पिछली आने वाली गवर्नमेंट्स ने क्या क्या गतके नहीं किए और क्या क्या कुछ उसके साथ सलूक नहीं किया, लेकिन इदारा अभी सीधा कमर तान के खड़ा है। वो इसलिए नहीं खड़ा कि उनके अंदर कोई बहुत बड़ा तीर है, बुनियादी तौर पे वो इसलिए खड़ा है कि उसकी फाउंडेशन के अंदर जो हमने खून डाला था, दैट मेड इट स्टैंड अप ऑन इट्स फीट। वो मैं खैर किस वक्त फिर आपको वो कहानी सुनाऊंगा कि किस तरीके के साथ उसके वो सारे कारनामे हुए, लेकिन बुनियादी तौर पे हम इस बात के ऊपर एग्री करते हैं कि एवरीथिंग इन द प्रोजेक्ट हैज टू बी प्लान्ड इन थॉरो डिटेल ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस। इसमें सारी चीजों के मैनेजमेंट प्लान बनेंगे, स्कोप, टाइम, कॉस्ट, जितनी मैंने नाम लिया आपको 10 के 10 नॉलेज एरिया के डिटेल प्लान बनेंगे। ऑल्दो इस बात का भी मुझे यकीन है कि फिर भी कुछ चीजें ऐसे नहीं टर्न आउट करेंगी जैसे मैंने सोचा था। तो भाई अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर उस वक्त उतने पोर्शन को देखेंगे ना, उसको ट्वीक करना आसान होगा, बजाय इसके कि दोबारा नया पंडोरा बॉक्स खोल के बैठ जाए। खैर, जब मैं ये सारी चीजें प्लान कर लेता हूं तो मेरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बन जाता है। और उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट प्लान बन गया, आप ये देखिए जितना दिमाग का काम करना था वो मैंने यहां कर लिया हुआ है, प्लानिंग में अपना दिमाग लगा दिया है। आप ये देखिएगा कि एग्जीक्यूशन में दिमाग का इस्तेमाल मना है। एग्जीक्यूशन का कतन ये काम नहीं है कि वहां बैठ के कोई बंदा सोचे अच्छा फिर हूं की करा। ये सब लिखा हुआ है, ये सब प्लान हो चुका है। उसने सिर्फ प्लान को खोलना है, उसे देखना है कि भाई इसके बाद क्या काम करना था, अगर ऐसा हो गया तो क्या करना है, अगर वैसा हो गया तो क्या करना है। खुद से सोच के नई नई चीजें इजाद करना, नए नए अहकामात बनाना, ये एग्जीक्यूशन का काम नहीं है। एग्जीक्यूशन इज अ डम प्रोसेस। टर्न बैक टू योर ओन प्रोजेक्ट। हम प्रोजेक्ट में क्या काम कर रहे हैं, प्लानिंग को टाइम नहीं देते और एग्जीक्यूशन में कहते हैं चलो जी धक्का, क्या बनाना है जी, घर बनाना है, चलो चलो तुम खुदाई करनी शुरू करो। भाई किस चीज की खुदाई करनी है, कहां से कहां तक खुदाई करनी है, पता ही कुछ नहीं है, बस खुदाई शुरू करो। अच्छा जी, खुदाई शुरू कर दी, वहां पे दीवार बनानी शुरू कर दी, बाद में पता चला ओहो यहां तो दीवार ही नहीं बननी थी। होता है ना जी, ये ड्रामेबाजी होती है। और उसके बाद ऑन द रन एग्जीक्यूशन, अच्छा यार ये गलत बन गई है, ऐसे करो, इसके साथ इधर से ये करके निकाल के और ये आगे बाथरूम बना दो इसका। कहने का मकसद है कि हम ऑन द रन गलती पे गलती करे जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, मक्खी पे मक्खी मारे जा रहे हैं, और अल्टीमेटली हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रिजल्ट ही यील्ड नहीं करेगा। तो एग्जीक्यूशन के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रिक्वायर्ड है। एग्जीक्यूशन में किसी को ये इजाजत नहीं है कि वो अपने से कोई फैसला ले सके। हमने जब प्लान को फाइनली करके बना के अप्रूव कर दिया था, करवा लिया था बॉस से, स्टेक होल्डर से, स्पॉन्सर से, तो अब मेरे पास कोई ताकत नहीं रही कि मैं किसी के भी कहने पे कुछ भी कभी भी चेंज कर दूंगा। कुछ भी नहीं चेंज हो सकता। प्लानिंग के ऐन मुताबिक काम करना एग्जीक्यूशन का फर्ज है। मैं इस बात को एग्री करता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो प्लान में लिखी हुई हैं मगर एग्जीक्यूटेबल नहीं हो रही। लाजमी बात है, हालात बदल रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से मसाइल आएंगे। जब ऐसा कुछ हो तो एग्जीक्यूशन वाला उसको रिपोर्ट करे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल को बताए कि जनाब ये मसला है। नो, अगर ये समझ लीजिए कि एग्जीक्यूशन के बाद मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल नहीं होती। एज सून एज एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑल्सो स्टार्ट्स। सो जो दिमाग लेके बैठे हुए हैं एक कमरे में, जो सोच विचार कर रहे हैं, जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं, वो हैं बैठे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में। एग्जीक्यूशन में मजदूर लोग बैठे हुए, वो काम कर रहे हैं, मसला आता है तो वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल को बताते हैं
कि जी ये मसला है, अगर ये फिक्स ना किया गया तो प्रोजेक्ट में मसला हो जाएगा। वहां पे वो बैठ के उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और चेंज रिक्वेस्ट बनाते हैं, और चेंज रिक्वेस्ट से जो अगर प्लानिंग में तब्दीली करने की जरूरत है वो करते हैं, और एग्जीक्यूशन वाले को बताते हैं कि भाई तू ऐसे कर ले, ये हमने अप्रूव करा लिया है, नया प्लान अप्रूव करा लिया है, चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है, बॉस ने खुद अप्रूव की है, और अब उसके मुताबिक तुमने आइंदा अब काम ये इस तरह से करने हैं। उसको मैं अमेंडेड प्लान या अपडेटेड प्लान भेज दूंगा, और वो एग्जीक्यूशन चल रही है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल भी चल रही है, तो एग्जीक्यूशन वाला उसको अडॉप्ट कर लेगा, और इस तरह काम वापस जाता रहेगा, करेक्ट होता रहेगा, जब तक के काम सही हो नहीं जाता। और जब सही हो जाएगा काम मेरे, और कितना सही करना है, जितना प्लानिंग में हमने स्टेक होल्डर के साथ इंटरेक्ट करके डिफाइन कर लिया कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या होना चाहिए। जब वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं, हमने कहा था ना प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना हमारा मकसद है, जब प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं तो फिर कोई चीज रीडू होने वाली रह नहीं जाएगी, काम मुकम्मल हो गया, डिलीवरेबल बन गया। अब मैं क्लोजिंग में चला जाऊंगा, पहले मैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की बात कर रहा हूं। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में मैंने प्रोजेक्ट को ट्रैक करना है, उसके स्टेटस को स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करना है, अगर कोई चेंज आती है तो उसको मैनेज करना है, क्वालिटी को मॉनिटर और कंट्रोल करना है, रिस्क को मॉनिटर एंड कंट्रोल करना है, प्रोजेक्ट टीम को देखना है, और कॉन्ट्रैक्ट जो ठेके मैंने आगे दे रखे हैं सब कॉन्ट्रैक्टर्स को, उनको मैनेज करना है। और इस सारे प्रोसेस में तब्दीलियां अक्कर होंगी, वो तब्दीलियां अप्रूव होंगी, प्लान्स अमेंड होंगे, और जब वो अमेंड हो जाएंगे तो एग्जीक्यूशन को बता दिया जाएगा कि भाई अब तुम ये चीज को ऐसे दुरुस्त कर लो, या आइंदा इस तरह से काम करना। इस तरह आपका प्लान हमेशा अपडेटेड रहेगा, और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल से जब चीजें पास हो जाएंगी, सब कुछ ठीक बन जाएगा, तमाम काम हो जाएंगे, तमाम चीजें बन जाएंगी, तो फिर हम क्लोजिंग के हवाले करेंगे, जो इसका एक फाइनल क्लोजिंग ऑडिट करेगा, ये इंश्योर करेगा कोई काम होना रह तो नहीं गया। मतलब जो लिखे हुए काम है, प्लान के अंदर लिखा है ये 10 काम होने हैं, आपने 9 काम किए हैं और आप क्लेम कर रहे हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो ये कैसे हो सकता है कि एक काम किए बगैर प्रोजेक्ट क्लोज हो जाए? या जो डिलीवरेबल बनानी थी वो उसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी? जो लोग आपने इस काम के ऊपर जो रिसोर्सेज चीजें फाइनेंसेस लगाए थे, क्या वो खर्च मर्च होने थे जो हो गए हैं, और जो बाकी बचे हैं उनको रिलीज किया जाए। स्टेक होल्डर की परसेप्शंस को मेजर किया जाए कि उन्होंने जो ख्वाहिशात रखी थी वो किस हद तक पूरी हुई हैं, और आइंदा के लिए क्या लेसन्स लर्नड हैं, और जो डिलीवरेबल है वो कस्टमर के हवाले करके प्रोजेक्ट को फॉर्मली क्लोज डिक्लेयर कर दिया जाए। ये जनाब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है पांचों प्रोसेस ग्रुप्स की, लेकिन दिस इज नॉट द होल स्टोरी। अभी तो हम तफसील में इन तमाम चीजों को देखेंगे। ये जो पांचों प्रोसेस ग्रुप हैं, इन पांचों प्रोसेस ग्रुप में काम करने के लिए जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं वो 10 हैं। वी हैव 10 नॉलेज एरियाज, और हर नॉलेज एरिया जो है वो शायद ये इनिशिएशन से लेके क्लोजिंग तक के प्रोसेस से समहाउ गुजरता है, मगर जो स्पेशलाइजेशन है उसको मैंने अलग अलग टुकड़ों में बांट लिया, और उसमें मेरे पास स्कोप है, स्कोप का नॉलेज एरिया है, टाइम का नॉलेज एरिया है, कॉस्ट का नॉलेज एरिया है, क्वालिटी है, ह्यूमन रिसोर्स है, कम्युनिकेशन है, रिस्क है, प्रोक्योरमेंट है, स्टेक होल्डर्स हैं, और इन सब का बाप इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू पुट ऑल ऑफ देम टुगेदर। ये स्लाइड आप तक पहुंच नहीं रही, आई डोंट नो क्या मसला है, ये पिछली स्लाइड पे फंसा हुआ है अभी तक। तो जनाब ये 10 नॉलेज एरियाज हैं, और जैसा मैंने आपसे कहा कि इन 10 नॉलेज एरियाज में जो सबका पेरेंट प्रोसेस है या पेरेंट नॉलेज एरिया है, उसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बजाते खुद कुछ नहीं करता, बाकी तमाम को हिदायत देता है और उनके रिजल्ट्स को अपने अंदर अकोमोडेट करता है, और फिर उसको कंसोलिडेट करके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाता है। तो इंटीग्रेशन के ओवरऑल प्लान का नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। तो इंटीग्रेशन इन सब के ऊपर बैठा हुआ है, उसके प्लान का नाम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, और हर एरिया जो है वो अपने अपने एरिया से रिलेटेड मैनेजमेंट प्लान्स बनाता है,
और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनाता है, इसके अलावा वो कुछ और चीजें भी बनाता है। ये ध्यान में रखिए कि जब कोई चीज किसी भी नॉलेज एरिया की हम प्लानिंग शुरू करते हैं तो हम उसके जो असूल और जवाबित हैं पहले वो इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद उन असूल और जवाबित के मुताबिक उसकी प्लानिंग के मुख्तलिफ काम करते हैं जिससे मुख्तलिफ आउटपुट्स निकलती हैं। किसी से कोई डॉक्यूमेंट बन जाएगा, किसी को लिस्ट बन जाएगी, किसी से कोई और चीज बन जाएगी। ये सब चीजें जब बनती जाती हैं अल्टीमेटली हम एक हतमी शक्ल तक जा पहुंचते हैं। वो हतमी शक्ल जो है जिसको हम कहते हैं जी बस इसके अलावा ये फाइनल है, ये फाइनल शक्ल है किसी भी नॉलेज एरिया की, ये फाइनल शक्ल है, स्कोप की फाइनल शक्ल है, ये टाइम की फाइनल शक्ल है, ये कॉस्ट की फाइनल शक्ल है। उस फाइनल शक्ल को हम कहते हैं बेस लाइन। जो जो मैंने कहा था कि असूल व जवाबित, उनको हम कहते हैं मैनेजमेंट प्लान। अब अगर टाइम है तो स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान पहले बनेगा, फिर उस स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान के तहत अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस विल हैपन will following the schedule management plan as given by the schedule management plan. We will do a number of processes in time management and ultimately that will all conclude into our baseline, an approved version of schedule. That finally approved version is called baseline. Now कहने को तो हर जो 10 नॉलेज एरिया हैं, हर 10 नॉलेज एरियाज की अपनी अपनी बेसलाइन बन जाएगी, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी चीज की बेसलाइन होनी चाहिए और कौन सी चीज की बेसलाइन नहीं होनी चाहिए। नाउ यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है, कुछ लोग इसको कहते हैं ट्रिपल कंस्ट्रेंट। किसी ने सुना हुआ जी ट्रिपल कंस्ट्रेंट का नाम? जी सर। ओके, क्या कोई डिस्क्राइब करेंगे ट्रिपल कंस्ट्रेंट क्या चीज है? एनीवन? सर स्कोप, टाइम, कॉस्ट। स्कोप, टाइम और कॉस्ट। ओके, और कुछ? एनीवन एल्स? क्वालिटी को नहीं लिफ्ट कराई आप लोगों ने? क्वालिटी स्कोप के अंदर ही आ जाएगी सिर्फ। क्वालिटी स्कोप के अंदर आएगी। अगर मैं ये कहूं कि ट्रिपल कंस्ट्रेंट गलत है, कैसा फील करेंगे आप? ट्रिपल कंस्ट्रेंट तो ऑब्सोलीट हो चुका है मेरे भाई। ट्रिपल कंस्ट्रेंट इज नो मोर बिकॉज इट हैज बीन फाउंड years ago कि these are not the only 3 constraints. Quality is also a constraint, risk is also a constraint, resources are also constraint. There are lot many other constraints. So these are not the constraints. These are not the only 3 constraints. So ट्रिपल वाली कहानी तो खत्म होगी। इसको वो आयरन ट्रायंगल भी कहते होते थे। So that concept is finished. अभी जो कॉन्सेप्ट है वो ये डेवलप हुआ है कि ये जो 3 चीजें हैं स्कोप, टाइम और कॉस्ट, ये दरअसल किसी भी प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने के काम आती हैं। अगर ये 3 टर्म्स के अंदर रहते हुए बात ना की जाए तो किसी प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। अब मैं कहता हूं जी घर बनाना है, तो सवाल पैदा होता है कि भाई कितना बड़ा घर बनाना है, स्कोप, कितने तकरीबन कितना टाइम है जिसमें घर बनाना है, टाइम, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास जो तुमने घर बनाना है, कॉस्ट। बाकी सब चीजें जो हैं इसकी सबसर्विएंट हो जाती हैं। अगर मैं इन 3 चीजों के से ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लूं तो मैं आगे की प्लानिंग करने के काबिल हो जाता हूं। उसमें मैं स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करूं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स को करूं, उसमें रिस्क निकालूं, कम्युनिकेट करूं, बाकी सारे नॉलेज एरिया इसके सबसर्विएंट हो जाते हैं, क्योंकि यही 3 चीजें हैं जो मैटर करती हैं। अगर फर्ज करें फर्ज होल्डर की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं तो आप अगर गौर करें तो उसकी रिक्वायरमेंट के चेंज होने से अगर खर्चा बढ़ता है तो कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, अगर टाइम बढ़ता है तो टाइम पे फर्क पड़ेगा, अगर स्कोप बढ़ता है तो स्कोप पे फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब है जो चीज पे असर पड़ेगा वो ये 3 है, स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट, एंड ऑल द नॉलेज एरियाज अल्टीमेटली इफेक्ट एनी वन ऑफ दीज आर मोर ऑफ दीज। एक से ज्यादा पे भी फर्क पड़ सकता है और किसी एक पे भी पड़ सकता है। इसलिए स्कोप, टाइम और कॉस्ट को हम कहते हैं कि ये हमारे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि वो जो बेसलाइन की मैंने बात आपसे की, तो हर किसी की बेसलाइन बनाने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं ये 3 बेसलाइन कर लूं चीजें तो मेरा मसला हल हो गया।
मैं अगर स्कोप, टाइम और कॉस्ट को काबू में कर लूं तो हर चीज काबू में आ गई, स्टेक होल्डर भी, प्रोक्योरमेंट भी, रिस्क भी, हर कोई काबू में आ गया। क्योंकि चेंज तो किसी वजह से भी लाई जा सकती है। अगर फर्ज करें कि जैसे हम बात कर रहे थे कि जी वो ठेकेदार भाग गया है, अगर ठेकेदार भाग गया तो प्रोक्योरमेंट का मसला, इसका मतलब है चेंज रिक्वेस्ट आएगी। चेंज रिक्वेस्ट आएगी, असर किस पर डालेगी? स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट पे। आप डाल लें असर, अमेंडेड प्लान बन जाएगा, ये 3 बेस लाइनें अमेंड हो जाएंगी, नया प्लान आ जाएगा, नए प्लान के हिसाब से काम शुरू कर दें, मसला ठीक चलता रहेगा। तो एक बात तो यह है कि आयरन ट्रायंगल की कहानी खत्म, या ट्रिपल कंस्ट्रेंट की कहानी खत्म। अब अगर कंस्ट्रेंट का नाम ले कोई, तो देर आर मोर देन 3 कंस्ट्रेंट्स, एंड तकरीबन 7-8 तो मैं भी अभी आपको बता सकता हूं। तो कंस्ट्रेंट्स कुड बी मेनी। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कोप कंस्ट्रेंट नहीं है, टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, कॉस्ट कंस्ट्रेंट नहीं है, वो है, लेकिन कहने का मकसद है कि और भी है कंस्ट्रेंट, यही खाली कंस्ट्रेंट नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि ये चीजें ड्राइविंग सीट पे कैसे बैठ गई। ये तीनों चीजें, स्कोप, टाइम और कॉस्ट जो है, ये तीनों इस तरह से प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को जकड़ के रखा हुआ है कि कुछ भी बदलेगा तो ये बदलेंगी, देयरफॉर ये ड्राइविंग सीट पे आ गई। और अब अगर मैं इनको काबू में कर लूं तो सब कुछ काबू में आ जाता है। इसका मतलब है मुझे 3 ही चीजों की फाइनल शक्ल चाहिए, बेसलाइन चाहिए। बाकियों के प्लान और डिटेल्स बना लें, बेसलाइन ना करें, बेसलाइन स्कोप और टाइम और कॉस्ट में खुद ही हो जाएगी। तो मैं सिर्फ इन 3 बेसलाइंस को मद्देनजर रखूंगा, और इन 3 बेसलाइंस को कोई भी ट्रिपल कंस्ट्रेंट अब ना गए। क्योंकि मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि तमाम यूनिवर्सिटीज में अभी भी वो, क्योंकि जो खुद पढ़ के आए हैं प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं, वो बेचारे वो ट्रिपल कंस्ट्रेंट पढ़ के आए हुए हैं, तो वो सारी जिंदगी वो बजिद हैं कि नहीं जी होता है ट्रिपल कंस्ट्रेंट, और किताबें लिखी हुई हैं भाई। इस वक्त इवन रीटा मलकई का आपने नाम सुना होगा, रीटा मलकई की किताब अभी तक ये कह रही है ट्रिपल कंस्ट्रेंट होता है, जबकि उसी किताब के अंदर उसने लिखा हुआ है कि 3 कंस्ट्रेंट जो हैं वो 7 हो गए। तो कहने का मकसद है कि ये वो जो स्टेटस क्वो है, जो आदत है, उसको ब्रेक अवे करना जरा मुश्किल होता है। तो लेकिन ये है कि ये लोगों को अब समझना होगा कि ये दिस इज नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। अच्छा जी, तो ये तो हमने बात की नॉलेज एरियाज की, और इसमें मैंने आपको ये भी इंसिस्ट कर दिया कि पेरेंट कौन है, इंटीग्रेशन पेरेंट है, और ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, स्कोप, टाइम और कॉस्ट ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब है कि इन्हीं 3 चीजों के बेसलाइन बनेगी, मैनेजमेंट प्लान हर चीज का बनेगा, और उसके अलावा और डॉक्यूमेंट्स बहुत से हर जगह से बनेंगे। लेकिन ये स्कोप, टाइम और कॉस्ट है, इसमें हतमी प्लान, स्कोप का एक हतमी प्लान होगा, बेसलाइन होगा, टाइम का एक होगा, कॉस्ट का एक होगा, और ये तीनों मिलके इंटीग्रेशन के जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है उसका हिस्सा बन जाएंगे। और इसके अलावा जितने भी मैनेजमेंट प्लान है हर एरिया के, वो भी आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा बन जाएगा। और बाकी जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए थे बीच में मुख्तलिफ नॉलेज एरियाज के अंदर, दे ऑल विल गो इनटू अनदर बास्केट, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स। ऑल्दो दे विल बी यूज्ड एंड रेफर टू आल्सो, एंड चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन जिस चीज को हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कहते हैं, that will contain all the management plans and all the baselines. So there are 3 baselines. 3 baselines होंगी, और बाकी सारे जितने भी मैनेजमेंट प्लान हर नॉलेज एरिया का है वो सारे के सारे उसमें होंगे। जनाब, यहां तक कोई बात समझ आती है जी? जी एनी कमेंट्स टिल नाउ? कोई हैवी ड्यूटी तो नहीं हो गया काम? नहीं सर, ठीक है। ओके, राइट जी। तो अब जनाब हम आगे चलेंगे, और यहां आप देखें, ये अगली स्लाइड अभी आपके सामने आएगी जब, तो आप ये देखेंगे कि वो जिसको हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं उसकी भी बाकायदा एक लिस्ट पीएमबीओके में दी हुई है, मतलब और कहीं भी ना आप देखें, पीएमबीओके के अंदर दिया हुआ है। स्कोप है, क्वालिटी है, स्केड्यूल है, बजट है, रिसोर्सेज हैं, रिस्क हैं, और भी चीजें हो सकती हैं, कम्युनिकेशन के भी कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं कभी। तो कंस्ट्रेंट्स कुड बी एनीथिंग। तो यहां पे जनाब जब हम शुरू करते हैं तो वी नीड टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट। आप ये देख लीजिए कि स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट कैन नॉट बी डिफाइंड until and unless we have clear requirements in front of us.
इस बात से एग्री करते हैं ना, मैंने प्रोडक्ट बनाना है ना कोई, जो प्रोडक्ट मैंने बनाना है मुझे बता दो ये करेगा क्या, कोई उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या, लोग क्या मांगते हैं इस प्रोडक्ट से। जब मुझे रिक्वायरमेंट्स देंगे तो तभी मैं अपने प्रोडक्ट का स्कोप डेवलप कर सकता हूं। प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट का स्कोप मैं तभी डिफाइन कर सकता हूं जब मुझे रिक्वायरमेंट्स का पता हो। और रिक्वायरमेंट्स किसकी होती हैं? स्टेक होल्डर की। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टेक होल्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम है? इसको कहते हैं स्टेक होल्डर एनालिसिस, किस स्टेक होल्डर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। और हम एक बात पहले शुरू से करते आ रहे हैं कि भाई स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई तो करो। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर स्टेक होल्डर को लिफ्ट ही नहीं कराई जाती, उनको कभी आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया, तो भाई रिक्वायरमेंट कहां से लोगे? रिक्वायरमेंट नहीं होंगी तो प्रोडक्ट का स्कोप कैसे बनेगा? प्रोडक्ट का स्कोप नहीं होगा तो प्रोजेक्ट का स्कोप कैसे बनेगा? WBS कैसे बनेगा? स्केड्यूल कैसे बनेगा? बाकी काम कैसे होंगे? कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप मुझसे ये कहेंगे नहीं तो हम तो प्रोजेक्ट करते हैं ना जी, हमारे प्रोजेक्ट तो ऐसे हो जाते हैं। मैं आपको वो भी कहानी सुनाऊं कि आपके प्रोजेक्ट हो कैसे जाते हैं। होता ये है कि आप बहुत ज्यादा एहसन बेहतरीन तरीके से भी काम करें, MS प्रोजेक्ट पे जनाब हमने स्केड्यूल बनाया और ये किया और वो किया, ये जो कुछ भी आपने बनाया कैसे बनाया, जरा अपने MS प्रोजेक्ट के एक्सपीरियंस को रिकॉल करें। हाउ डिड यू डू इट? एक आदमी जाता है, अकेला बैठ जाता है प्रोजेक्ट कंप्यूटर के ऊपर और उसमें जनाब अपनी पूरी अकल इस्तेमाल करते हुए एक्टिविटीज के नाम बनाने शुरू करता है, तो ये करूंगा वो करूंगा। पहली बात, सबसे पहली गलती है वो ये है कि वो एक सीक्वेंस में सोचना शुरू करता है, पहले फिर ये फिर ये फिर ये। सीक्वेंस में सोचने की वजह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो इस सीढ़ियों की शक्ल में बनना शुरू हो जाता है, उसके अंदर पैरेललिज्म नहीं आता। आप पहले पहले बगैर ज्यादा सोचे जब एक पहला स्केड्यूल बनाते हैं तो आपको नजर आता है कि यार इसके अंदर तो कोई भी काम पैरेलल नहीं हो रहा। फिर कुछ सोच समझ के बाद जब आप दोबारा उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं तो फिर कहते हैं ओहो, जब ये काम हो रहा है तो ये भी तो कर सकते हैं साथ। खैर एनीवेज, ये तो बात की बात है। बुनियादी तौर पे मैं आपको जो चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि जब आप एक्टिविटीज के नाम भी डाल देते हैं, जब उनकी ड्यूरेशन डालनी होती है तो एक ही आदमी अकले कुल बन के अपने अंदाजे मार रहा होता है, 2 दिन इसको लगा देते हैं, 4 दिन इसको लगा देते हैं, 6 दिन का ये काम हो जाएगा। कुछ चीजों के पीछे रीजन है, कुछ के पीछे रीजन भी कोई नहीं है। और कंसल्टेशन विद टीम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जनाब आपने जो कुछ भी कार्रवाई की, कंप्यूटर को आपने वो डाटा दे दिया और आपको नहीं पता कि ये क्या हो रहा है इस डाटे के साथ, लेकिन उसने एक शक्ल बना दी आप जो आपको बड़ी पसंद आई कि यार ऐसे मेरा प्रोजेक्ट होगा। वो गैंट चार्ट बन गया आपके सामने। आपको यू फेल इन लव विद योर गैंट चार्ट कि यार ये क्या बात है यार, मैं इतनी अच्छी प्लानिंग कैसे कर सकता हूँ, ये मैंने किया है। आप उसका एक प्रिंट लेते हैं, उसको जनाब जाके बॉस से अप्रूव कराते हैं, सर देखें क्या बात है, क्या जबरदस्त चीज बनाई है मैंने। बॉस को भी कख नहीं पता होता प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या चीज है, वो कहता ओ जबरदस्त, क्या बात है, क्या लाइनें लगाई हैं यार, सीधी लाइनें हैं ये तो बिल्कुल। वो उसके ऊपर साइन कर देता है, अप्रूवल भी हो गया। भाई को अपने चेक नहीं किया, ट्वीक नहीं किया, पहली शक्ल जो गैंट चार्ट की बनी उसको पकड़ के आपने दुकान सजा दी। और फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि आपने कौन सा इसके ऊपर अमल करना है, आपने कौन सा इसको फील्ड में लेके जाना है, आपने तो इसको बस दीवार पे लगा देना है अपने बॉस के ऑफिस में या अपने प्रोजेक्ट के ऑफिस में। उसके बाद इससे कौन पूछेगा भाई तुम कहां हो कहां नहीं हो। एक्चुअली जो प्रोजेक्ट चल रहा होगा आप उसको इसके साथ मैच करके देखते ही नहीं है और उसके Unmuted. जी आवाज आ रही है अभी? आवाज आ रही है जी? अब ये सब जी हाँ, दरमियान में clear। गैप आ गया था काफी। हाँ वो कुछ कनेक्शन का बहुत ही ज्यादा खराबी हुई है जिसकी वजह से कोई मसला हो रहा है। बट एनीवेज हम सर बॉस तक पहुंचे थे, बॉस ने ओके किया सर। हाँ जी, तो बात ये कि बहुत से आपने जाके मोहर लगवा ली है, उसको भी समझ कख नहीं आई और आपने जनाब उसके क्या कहते हैं काम शुरू करा दिया। अब जब वो काम शुरू कराते हैं तो ये जो इतना ड्रामा करके आपने ये एक चार्ट बनाया था और इसकी तरफ कभी मुड़ के भी आ जाओ, इसको देख भी लो, इस पे क्या बना हुआ था, किस काम के बाद क्या करना था। पहली बात तो मुझे इस बात पे ही शक है कि ये आपने प्लान जो बनाया ये गलत बनाया।
दूसरी बात, इसके मुताबिक आप काम कोई नहीं कर रहे, और जो कुछ हो रहा है वो उसके ऊपर दिखा नहीं रहे, अपडेट नहीं कर रहे, प्लान को रिवाइज नहीं कर रहे, और वो एक ही चार्ट लगा हुआ है, पूरा प्रोजेक्ट गुजर जाता है, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन कहीं और जा रही है, चार्ट पे कुछ और लिखा हुआ है, एंड थिंग्स कीप हैपनिंग। मैं आपको बताऊं, ये मैं जो आपको बार बार इंसिस्ट करता हूँ ऐसा होता है, और इतने कॉन्फिडेंस से मैं जो बात कह रहा हूं, इसकी वजह है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ये फ्लॉ है। ये क्या नाम है इसका, गालिबन वारिद वाले हैं, इन्होंने मुझे बुलाया जब इनका ये वाईफाई का प्रोजेक्ट, जो क्या कहते हैं, वाईफाई कहते हैं ना उसको, वाई मैक्स का प्रोजेक्ट ये लोग लॉन्च करने के लिए पाकिस्तान में फर्स्ट आ रहे थे। पहला वाई मैक्स इन्होंने लॉन्च करना था और बहुत बड़े स्केल पे करना था, और उसका बड़ा इंतजार था मार्केट में और सब कुछ, और इनका प्रोजेक्ट रिलीज ना हो, डिले जनाब 3 महीने 6 महीने साल, अच्छा खासा डिले। इवन के पीटीसीएल वालों ने अपना जो वाई मैक्स की सर्विस थी, छोटी हल्की फुल्की थी, वो शुरू भी कर दी, और भी एक दो ने कुछ दिखाना शुरू कर दिया कि जनाब हम लेके आ रहे हैं। तो इनकी जान को आई हुई थी, इनसे वो प्रोजेक्ट हो नहीं पा रहा था। इन्होंने मुझे बुलाया कि जी आप आके हमारे प्रोजेक्ट को ऑडिट करें और हमें बताएं हम कहां गलती कर रहे हैं। मैं गया जी वहां, फिर वहां जाके मैंने अच्छा, ये बड़ा एक एक्यूट प्रॉब्लम है कि जब आप किसी की ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वो लोग बड़े एप्रीहेंसिव होते हैं कि यार ये पता नहीं कितों आ गया, बड़ा एक्सपर्ट बना फिरता है, ये पता नहीं कहां से आया, इसको क्या पता। अच्छा, आप मुझे बताए वहां कोई ना, मैं सवाल करूं, मुझे कोई बताए ना, अपना प्रोसीजर बता दो, अपना तरीका बता दो, अपने वो ये बता दो कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बना क्या रहे हो, स्केड्यूल क्या है। जब स्केड्यूल पे बात आई तो वो तो जनाब हत्थे से उकड़ गए, नहीं नहीं जी स्केड्यूल हमारा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा हाउ डू यू नो कि आपका स्केड्यूल ठीक है? जी वो मतलब हमने बाहर से बनवाया है, बाहर से क्या कहते हैं इंजीनियर आया हुआ है, इटालियन एक्सपर्ट है, और वो जनाब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैनेजर, उसका स्केड्यूल तो गलत हो ही नहीं सकता। तो मैंने उनके सीईओ को बुलाया, मैंने कहा यार बात ये है कि जरा ये बंदा सामने कराओ ना। उसने कहा नहीं जी इटालियन है। मैंने कहा तो अल्लाह मियाँ तो नहीं है ना भाई, इटालियन है तो क्या हो गया? मैंने कहा बुलाओ उसे। मैंने कहा मुझे स्केड्यूल दो। स्केड्यूल देके जब मैंने उसको देखा तो आप यकीन करें, मतलब वो लाजमी बात है कि बड़ा अच्छा एक्सपर्ट था, सब कुछ था, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, और हमसे शायद बहुत बेहतर ही बना रहा था जो कुछ बनाया हुआ था। लेकिन उसने वही कॉमन मिस्टेक जो एक कॉमन मैन करता है। एमएस प्रोजेक्ट में बनाया हुआ है प्रोजेक्ट, और ये आपको मैं बताऊं, ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद भी नजर आएंगी। आप एमएस प्रोजेक्ट में काम कैसे करते हैं, आप पहले पकड़ के एक्टिविटी सारी लिख देते हैं, फिर उनके सामने बैठकर उनकी ड्यूरेशन चढ़ाते रहते हैं, उसके बाद बैठ के उनको लिंक बनाते रहते हैं। होता क्या है कि इसमें से कहीं ना कहीं मिसाल के जब लिंक कर रहे होते हैं, आप कहते हैं अच्छा इस एक्टिविटी को उससे लिंक कर देते हैं, उसको उससे करते हैं। एक तो ये कि इसमें कोई डिस्कशन शामिल नहीं है, जो आपका दिल कर रहा है आप बनाए जा रहे हैं, चलिए मैं उसको तो ऑब्जेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि देयर आर मेनी एक्टिविटीज जिनको आप लिंक करना भूल जाएंगे, और वो लटकती रह जाएंगी बीच में, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। वो एक्टिविटी होगी जायज, लेकिन वो लटकती रह जाएगी बीच में। अच्छा, अब होगा क्या कि अल्टीमेटली जब आपका प्रोग्राम, अब उसका जो प्रोग्राम था उसमें को 10,000 एक्टिविटीज थी। उस 10,000 में से ही डिड नॉट केयर कि ऐसी एक्टिविटीज भी बीच में एग्जिस्ट करती हैं जिनके ना आगा है ना पीछा है। मोर ओवर, जब वो मुझे नजर आई, ये एक फॉल्ट था जब मैंने उसका पकड़ा, वो कोई 150 के करीब ऐसी एक्टिविटीज थी, वो मैंने निकाल ली, और मैंने उसको बिठाया उधर प्रेजेंटेशन में, उसको मैंने इटालियन को पूछा, मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा ओके दीज एक्टिविटीज आई प्रॉब्ली दे आर नॉट लिंक्ड, और उसने बड़ा लाइटली ये बात की। मैंने कहा डू यू थिंक नॉट लिंकिंग दीज एक्टिविटी इज जस्ट अ स्मॉल प्रॉब्लम? मैंने कहा टेल मी, उनमें से एक एक्टिविटी मैंने उठा ली, मैंने कहा यू टेल मी कि इफ यू डोंट डू दिस एक्टिविटी व्हाट विल हैपन, एंड दे वर थ्रू कोई 50% से ऊपर वो प्रोजेक्ट कर चुके थे। तो मैंने कहा कि ये काम कब होना चाहिए था, इसमें तो नहीं लिखा हुआ, डेट नहीं लिखी हुई, ये एक टॉवर बनना था, ये कब बनना चाहिए था? उसने कहा ये तो प्रोजेक्ट के दूसरे महीने में बनना चाहिए था। मैंने कहा तो बना कि नहीं बना? कहता नहीं बना, तो ये याद ही नहीं रहा। तो मैंने कहा भाईजान नुकसान तो हो गया ना फिर, ठीक है। अब या तो तुम कहो कि ये टावर बनाना जरूरी नहीं था, तो मैं इसको प्रोजेक्ट के अंदर से निकाल के बाहर फेंक देता हूँ कि यार ये तो ऐसे ही गैर जरूरी लिखा हुआ था, इसको निकाल दो। मैंने उसको यही कहा कि ये जो 150 एक्टिविटीज हैं, क्योंकि इनके बगैर तुम्हारा काम चल रहा है
और तुम्हारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल जा रहा है तो ये फिर बेकार एक्टिविटीज होंगी, इनको निकालो बाहर फेंक दो। कहता नहीं नहीं नहीं, इनको बाहर नहीं निकालना। मैंने कहा फिर करो इनको कहीं जोड़ो। तो ये आप देखेंगे कि ये कॉमन मिस्टेक्स हैं और फिर हम फॉलो भी नहीं कर रहे उस प्लान को। अगर ये प्लान हम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो ये गलतियां ना हो। एनीवेज जी, ये तो डिस्कशन आगे होती रहेगी। तो ये जो हम रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे थे कि आइडेंटिफाई करें रिक्वायरमेंट्स को, स्टेक होल्डर्स को पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उनसे रिक्वायरमेंट्स ली। तो ये रिक्वायरमेंट्स अगर मुझे क्लियर हो जाएंगे, मुझे पक्का बता देना कोई कि लोगों की क्या ख्वाहिशात हैं, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, जिससे रिक्वायरमेंट्स बनती हैं। अच्छा, अब यहां पे मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे करना चाहूंगा कि नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर ऑल नॉट द रिक्वायरमेंट्स। ख्वाहिशात है ना जी। एक आदमी कहता है जी मुझे यहाँ महल बना दो। भाई मैं तो यहाँ 2 कमरे का मकान बनाने निकला हूं, तुम कह रहे हो महल बना दो, इसमें सोना लगा दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो लाजमी बात है कि इसकी कोई हद है। तो जो अनरीजनेबल डिमांड है या एक्सपेक्टेशन है उसको समझाने की जरूरत है कि भाई ये मेरे स्कोप से बाहर की बात कर रहे हो। 2 कमरे का घर बनाने का हुक्म मिला है, इसके मुताबिक बताओ कि इसमें क्या होना चाहिए। तो उसके अंदर की बात बताओ ना, बजाय इसके कि नहीं यार एक कमरा और होना चाहिए, या इसकी जगह पे एक पुरानी चीज होनी चाहिए, यहाँ स्टेडियम होना चाहिए। तो ये अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट्स को बीच में से हम कास्ट ऑफ कर देंगे और हम उसको पहले तो समझाने की कोशिश करेंगे स्टेक होल्डर को। ना समझा तो हम इसको एस्केलेट कर देंगे इशू को अपने बॉस के पास कि सर तुसी समझाओ, मेरे से तो नहीं मानता ये बंदा। तो इस तरीके के साथ हम उसमें से छांटी करेंगे और अगर किसी की जायज ख्वाहिश है और वो प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन के फायदे में भी है तो क्यों ना उसको बीच में डाला जाए रिक्वायरमेंट्स में। व्हाई डू यू से कि कॉन्ट्रैक्ट के एन मुताबिक ही काम होगा और कुछ नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट में भी तो गलतियां होती हैं, आप बाद में अमेंड नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट्स को, निगोशिएशंस नहीं होती। वो इसलिए होती हैं कि आपने उन चीजों को इग्नोर किया और आखिर में जब वो हाथी बन के सामने आ गए तो तब आपने एक्स्ट्रा पैसे देके वो बीच में डाली। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अभी अगर कोई चीज चेंज करवानी है तो करवा लो, सस्ता पड़ेगा। जब कोई चीज बुरी हो जाएगी, टूट के गिर जाएगी, उसके बाद आप रीनिगोशिएट करते करेंगे, झगड़ा भी होगा, जायका भी, मुंह के जायका भी खराब होगा और अल्टीमेटली पैसे तो बहुत ही ज्यादा लगेंगे। बट अगेन वी डैम केयर अबाउट दिस। हमें इस बात की परवाह ही नहीं है, हम दूरअंदेश लोग हैं ही नहीं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा होता। एनीवेज जी, अब वहां पे लोगों की नीड्स, कंसर्न्स और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पता चल जाते हैं, हम उनके अराउंड प्लान करते हैं और जो जायज ख्वाहिशात हैं उनके मुताबिक हम अपनी रिक्वायरमेंट्स एस्टेब्लिश करते हैं। और रिक्वायरमेंट्स हमें ये बता देती हैं कि प्रोडक्ट की क्या शक्ल होगी, उसके क्या फंक्शंस और फीचर्स होंगे, क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी, वो क्या करेगी वो प्रोडक्ट। जब मुझे उसकी डायमेंशन और हर चीज क्लियर है, इसका मतलब ये होगा कि मेरा प्रोडक्ट स्कोप एब्सोल्युटली क्लियर हो गया, क्या बनाना है क्लियर हो गया। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कैसे बनाना है। दिस इज द वर्क इन्वॉल्व। प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज, वो कौन से काम करें तो ये चीज बन जाए। वो तमाम काम जिसको करने से ये चीज बन पाएगी, वो मेरा प्रोजेक्ट का स्कोप है। प्रोडक्ट का स्कोप था क्या बनाना है, प्रोजेक्ट का स्कोप है कैसे बनाना है। और इस तरीके के साथ जब मुझे कैसे बनाने का पता चल जाता है तो फिर मैं जनाब आगे की प्लानिंग की चीजें करता जाता हूं, एक्टिविटीज और ये वो सारी चीजें उसके बाद आती हैं। लेकिन देखें बात ये है, ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं ये एक जर्नल विजडम है जो हर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होनी चाहिए और उसको इसको फॉलो करना चाहिए। हम इन बातों को इग्नोर करके सीधी छलांग मारते हैं एमएस प्रोजेक्ट के अंदर और कहते हैं एलओजी प्रोजेक्ट। विदाउट प्लानिंग हम प्रोजेक्ट के अंदर घुस जाते हैं और हम अपने आप को हालात के धारे पे छोड़ देते हैं। ये तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली बातें हैं ही नहीं, फिर हमें प्रोजेक्ट मैनेजर कहलाने का हक कहां से मिलता है। सो सेटिंग अप, मेंटेनिंग एंड कैरिंग आउट कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर्स, और इसको इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाना है, कोलैबोरेटिव नेचर रखनी है, स्टेक होल्डर की हैंड होल्डिंग करनी है, कॉन्टिन्यूसली स्टेक होल्डर को अपने साथ रखना है और अपने कॉन्फिडेंस में रखना है। उसको वो ओन करे आपके प्रोजेक्ट को, बल्कि आपका स्पोक्स पर्सन बने। अगर आप स्टेक होल्डर के साथ ये कनेक्शन नहीं रखेंगे और उससे बात नहीं करेंगे तो स्टेक होल्डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कहीं भी मौका नहीं जाने देगा जिसमें आपकी बेइज्जती ना करवाए। लेकिन अगर वो आपकी टीम का हिस्सा बन चुका है, अगर आप
का उसका कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट करता है तो वो आपका स्पोक्स पर्सन है। अगर कोई आपके खिलाफ, आपके प्रोजेक्ट के खिलाफ बात कर रहा होगा, ये उठ के खड़ा हो जाएगा, मेरे प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई बात ना करे। तो आपने उसको अपनी टीम का मेंबर बनाना है। तो ये बात है जी, स्टेक होल्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो जो हम बात कर रहे थे कंस्ट्रेंट्स के हवाले से, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। ट्रिपल इज नो मोर, ट्रिपल कंस्ट्रेंट की कहानी खत्म होगी। स्कोप है, टाइम है, कॉस्ट है, क्वालिटी है, रिस्क है, रिसोर्सेज हैं, फिर कम्युनिकेशन भी है। तो देयर कुड बी एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स एंड कंस्ट्रेंट्स कुड बी इवन मोर। कोई कैद नहीं है कि ये सिर्फ इतने ही होंगे। लेकिन जहां तक मैंने बात की प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से, तो वहां थोड़ी बात बदलती है। राइट, यहां तक जनाब आर वी ओके? बात समझ आ रही है ना जी? जी हाँ। लेकिन जी अगर मैं कोई ओवर टेक्स्ट कर रहा हूं आपको, मुझे साथ साथ बताते चले जाए कि अब बात समझ नहीं आ रही है, इस बात को मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है, वो मैं कर दूंगा। लेकिन ये कि ऐसा ना हो कि हम स्किप कर जाए किसी चीज को और वो बाद में फिर प्रॉब्लम करे। अच्छा जी, अगला जो है पोर्शन वो है चेंज के हवाले से। अब ये गौर कीजिएगा, पोटेंशियल फॉर चेंज। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर इनहेरेंट पोटेंशियल फॉर चेंज है, क्योंकि ये तो खड़ा ही मुतजलजल बुनियाद के ऊपर है, इसका तो पांव ही मजबूत नहीं है। मैं जिस कमरे में दाखिल हो रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है ये कमरा अंदर से कैसा होगा। जिस काम के लिए मैं दाखिल हो रहा हूं, मुझे ऐसा काम मैंने पहले नहीं किया, ये काम मैंने पहले नहीं किया। समझ रहे हैं ना जी मेरी बात? तो इसका मतलब है कि मैं तो मुतजलजल ग्राउंड के ऊपर खड़ा हूं, मुझे तो यकीन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल ऑफ चेंज। प्रोजेक्ट की लाइफ के दौरान पता नहीं क्या क्या तब्दीलियां आएंगी, जिनको मैं नो नहीं कह सकता, मुझे उन्हें एकोमोडेट करना पड़ेगा और प्लानिंग उसके मुताबिक मुसलसल अमेंड करते रहना पड़ेगा। Therefore, we call project management plan is iterative in nature. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बार बार बनता है, एक दफा तो बन जाता है बड़ा सोच समझ के, लेकिन बार बार अमेंड होता है। हर चेंज को मद्देनजर रखते हुए हम उसको अमेंड करते हैं एंड दिस कंटिन्यूस। इस बार बार वाले प्रोसेस को ये हमारा लर्निंग प्रोसेस भी है। जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में आगे की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम नई नई चीजें सीखते हैं, नई नई हकीकतें सामने आती हैं और उनकी रोशनी में हम चीजों को और ज्यादा समझ और एलेबोरेट करने के काबिल होते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन। एक तो मैंने कहा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इज आइटरेटिव इन नेचर, और दूसरा ये जो कॉन्सेप्ट है कि साथ साथ हम सीखते जाएंगे और मजीद खोलते जाएंगे और समझते जाएंगे चीजों को। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, प्लानिंग डिटेल होती चली जाएगी। इसका मतलब है कि मुझे सारी प्लानिंग डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक तो ब्रॉड प्लानिंग सारी चीजों की कर लूं, और जो पोर्शन इमीडिएटली किया जाने वाला है उसको मैं तिया पांचा कर दूं, उसकी तफसीली प्लानिंग कर लूं। और जैसे जैसे मैं एक एक स्टेप में, एक एक फेज में आगे बढ़ता जाऊंगा, अगला का वक्त आएगा उसकी प्लानिंग कर लूंगा तफसीली, उसके अगले का वक्त आएगा उसकी कर लूंगा। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन। यहां पर आपके पास मौका है कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करने का, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे प्लान को और ज्यादा तफसीली बनाने का। सो जैसे जैसे मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, मोर स्पेसिफिक information is available, more accurate estimates are available, I will keep continuously improving, I will keep updating my plan and my plan will become more solid. लेकिन याद रहे कि ये प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन प्लानिंग में नहीं हो रही। प्लानिंग में तो जो करना था आपने कर लिया, ये एग्जीक्यूशन होने के दौरान मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कर रहा है, तो वो प्लान को अमेंड करता रहेगा, एग्जीक्यूशन को बताता रहेगा, और चेंजेस आती रहेंगी, वो उसको अपडेट करता रहेगा। एंड दिस थिंग इज गोइंग टू कंटिन्यू टिल द प्रोजेक्ट कंप्लीट्स। सारी रिक्वायरमेंट वो पूरी करके जब प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगा तब तक। तो ये कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट का सफर है। दिस अलाउज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम टू डिफाइन वर्क एंड मैनेज इट टू अ ग्रेटर लेवल ऑफ डिटेल एज द प्रोजेक्ट इवॉल्व। ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है प्रोजेक्ट का। शुरू में धुंधला नजर आ रहा था, अब इमीडिएटली करीब वाली चीज क्लियर नजर आ रही है, हम उस पर चलना शुरू कर दिया हमने उस सड़क के ऊपर। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे का ग्राउंड क्लियर होता जा रहा है।
ऐसा ही है ना जी। तो जो जो क्लियर होता जाए उसे प्लान करते जाएं, उसकी तफसील बढ़ाते चले जाएं, प्लान को अपडेट करते चले जाएं और आपका काम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। ओके जी, अगला जो टॉपिक है वो मैं आज स्टार्ट नहीं करना चाहता। दिस इज लेंथी एंड दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। तो ये पोर्टफोलियो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपस का जो रिश्ता है, इसको मैं कल पे डालता हूं। अभी मैं ये चाहूंगा कि अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई चीज क्लियर नहीं है, वो आप मुझसे पूछिए। सर इफ आई मे, अभी जो आपने बात की कि एज वी मूव अलोंग तो वो क्लियर होता जाएगा, तो इफ आई से अ स्टेटमेंट, इज इट ट्रू कि स्कोप बेसलाइन वुड जनरली डिफाइन कर देगी, बाकी चीजें जो है वो चेंज होती रहेंगी, स्कोप बेसलाइन तो चेंज नहीं हो सकती प्रोजेक्ट के दौरान? हो सकती है जी, हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। लेकिन आप कोशिश करते हैं कि इसको सबसे आखिरी रिजॉर्ट के तौर पे चेंज किया जाए। और दूसरी बात यह कि हम ये तो समझ रहे हैं ना कि अगर स्कोप चेंज हो गया तो पूरी बिल्डिंग में जलजला आ जाएगा। लेकिन Exactly. अगर जरूरत है पूरी बिल्डिंग में, अगर मैं कोई कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि जो चीज हम बना रहे हैं और बिल्डिंग कंप्लीट होने वाली है और हमें पता चला ओहो यार ये आजकल के हालात के हिसाब से तो ये चीज सूट नहीं करती, तो मेरा मतलब है फिर क्यों, व्हाई शुड यू कंप्लीट इट। स्कोप चेंज हो गया ना, स्कोप चेंज होने की सूरत में रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, या तो अबंडन करें या करेक्ट करें। हमारा जो हम इसके स्कोप है तो बंधन ही ना होगा। जी, अगर स्कोप में कोई ज्यादा मेजर चेंज होगी तो फिर तो बंधन करना पड़ जाएगा। उसका असर नीचे तक जाएगा, सब जगहों पे जाएगा। लेकिन चेंज हो सकता है, हो सकता है। ऑल्दो कोशिश हमारी यही होगी कि ना हो। अगर आपने अच्छे तरीके से स्कोप मैनेजमेंट की है, स्कोप प्लानिंग की है, तो ये नहीं होगा। लेकिन फिर भी हो जाता है। अब ये जो हम ओपीएम 3 का प्रोजेक्ट था, जो सेकंड एडिशन इसका लिखा जा रहा था, उसमें 4 साल का प्रोजेक्ट ये प्रोग्राम था। 4 साल में जब 3 साल गुजर गए और हम तकरीबन इस स्टैंडर्ड को लिख चुके थे, तकरीबन लिख चुके थे, आखिरी दमों पे था। आखिरी साल होता है उसके लिए, उसकी प्रिंटिंग वगैरह, ड्राफ्ट छपते हैं और प्रिंटिंग होती है और फिर वो किताब छप जाती है। तो उस वक्त पीएमआई ने हमें कहा कि जी आपका चार्टर ही चेंज हो गया। आप तो स्कोप की बात कर रहे हैं, चार्टर ही चेंज हो गया, रिक्वायरमेंट ही, बेसिक रिक्वायरमेंट ही चेंज होगी, तो स्कोप भी सब कुछ चेंज। तो मतलब मैं भी उस वक्त इस बात पे बड़ा चौंका था कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर पता चला कि हालात से तो कोई आपका वो नहीं है ना, वो जलजला आ गया, सब कुछ जो किया था वो पानी में मिल गया, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, और जो भी कुछ हो सकता है हम उसके हिसाब से अपने आप को फ्लेक्सिबली ओरिएंट करते हैं। तो ये काम हो रहा है जी। एनी अदर क्वेश्चंस? ये बताएं बोर कौन कौन हुआ है? थैंक यू सर। मैं तो नहीं हुआ सर। अच्छा, सर आपने बोर नहीं होने दिया। जी जी जी, क्या कह रहे हैं? आपने अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। देखें जी, ऐसा है कि मैं तो ये चाहता हूं कि आप लोग अगर किसी चीज को डिबेट करना चाहते हैं तो हम वो भी करें, क्योंकि फेस टू फेस में हम काफी डिबेट करते हैं। लेकिन अब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में मतलब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जरा कनेक्शन वगैरह की तो होती है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग बीच में पार्टिसिपेट करना चाहें, बोलना चाहें, हाथ खड़ा किया करें, और हम जिसे कहते हैं सैर हासिल बहस करेंगे उस चीज के ऊपर, और हम तसल्ली के साथ उसके नतीजे में कहीं पहुंचाएंगे। तो इट विल, इसको एंजॉयबल अगर बनाना है ना आपने, तो उसका यही तरीका हो सकता है, इंटरेक्ट करें। तो चलें, ठीक है जी। इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू टुडे। और मेरा ख्याल है आज हमारा थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर तरीके के साथ हम चीजों के अंदर घुसते चले जा रहे हैं, और अल्टीमेटली यू विल हैव मोर अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और मजा भी आपको ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। पहले 2 दिन तो जरा थोड़ा सा थका देने वाले थे, लेकिन ये है कि अभी आप एंजॉय करेंगे।
Anyway ji, thank you very much for your company and take care. Thank you very much, sir. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.